Will AI replace humans? The rise of artificial World intelligence. of artificial intelligence. Artificial intelligence or AI. I have something to tell. AI will replace humans who act like robots. कि भाई मुझे बोला गया मुझे A B C D करना है, copy paste करना है, ये करना है. अगर if I can automate that, why would I spend that money on a person rather than automate it or do it via workflow? Today we have very experienced guest. The one and only, the leader, the achiever, Brijesh Patel. Welcome Brijesh to Build More on podcast. Thank you very much. You also mentioned that you live in US, UK, Canada. वहाँ पे जो culture है, it's very different with respect to India. Like people are talking about work-life balance, mental health, and so many things. तो आप में कोई changes हुआ? There is nothing called as work-life balance. For example, I do these things every year. 2 or 3 weeks I go back to my village. मेरा गाँव में से with my son, my wife. I stay there for 2 weeks. There is no stress, nothing. I wake up in the morning 6 o'clock, काम करो, शाम को 6 बजे लॉग आउट करो, बाहर बैठो, बात करो, रात को 11 बजे तक खेलो. So when you go there, you already have the same work. You are living the same life. Here, you are also the same. It's just your surroundings that change. हम लोगों को ये बनना है इसलिए हम ये कर रहे हैं. हम लोगों को किसी ने फोर्स नहीं किया. Let me ask something very personal story. अच्छा. यार आपके नाम का कॉल आ रहा है मुझे कि ब्रिजेश को जानते हो कि नहीं, उससे बात करवाओ. Perfect. So this kind of scams are happening. This is the trend, right? If people find that you are connected to me, they can easily get your contact details. आज के दिन में contact details निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. email ID, phone number निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. आज के दिन में if you check any newspaper, digital arrest, digital fraud के almost 4-5 केस आपको रोज मिलेंगे. Incidents of digital banking fraud soared In lakhs, in crores, etc. आई स्टार्टेड स्टार्टअप. मैंने इंक्रिप्शन और सारी चीज़ें यूज़ की, बट समहाउ कोई ब्रीच हो गया, या तो फिर मेरे डेवलपर के कोई एआई टूल यूज़ कर रहा था और उसकी वजह से कोई ब्रीच हो गया और मेरे एनवायरमेंट्स वेरिएबल लीक हो गए और मेरा डेटाबेस डिक्रिप्ट हो गया. सो इस सिनेरियो में एज अ प्रोडक्ट ओनर उनको क्या स्टेप लेने चाहिए? इज देयर एनी गवर्नमेंट पेनल्टी is applicable for this kind of activities? Yes, if you are a registered company, as per laws, if there is any breach, you have to notify the authorities. And as per DPDP Act, अभी जो एक 2023 में first draft आया, 2025 में नया आएगा अभी. Depending on the organization, etc., there are crores of penalties involved. So guys, today we have very experienced guest who mentor to more than 700 people, who give more than 400 plus talks, national and international, and who give the trainings of the more than 10,000 hours, and who has more than 20 awards. So because I just have a curiosity, so in the 700 numbers, so they just count us or not? Definitely not. I think You don't need my mentorship. Brijesh should say like 702 people mentored. Right. So, welcome Brijesh to Thank Build you, More thank on you. podcast. Thank you very much. Thank you for having me. So Brijesh, I would like to know your mindset and your journey in a way. So I remember, आप कुछ साल पहले जब हम फर्स्ट बार मिले, 1.5 से 2 साल पहले, you were mentioning that आपको कोई जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी है. लाइक जैसे कि नाम तो हम अभी नहीं लेते हैं कि वहाँ पे आपको सामने से बुलाया गया ब्रिजेश पे ये काम करना है, चलो आ जाओ. आपने 2-3 साल काम किया, अभी भी आप IBM में वर्क कर रहे हैं. Correct. Very big MNC. I think उसके IBM completed more than 110 years. 114 to be precise. Oh, Wow. Is it? Yes. So इतनी स्किल सेट कैसे डेवलप कर सकते हैं? So, I'll go back 10-12 years, right? So, I come from a very tier 2, tier 3 city. तो कौन सा city था? This is इचलकरंजी, कोल्हापुर के पास है, महाराष्ट्र में. I was born and brought up there. Okay. I did my schooling there. कॉलेज मैंने किया है जहाँ पे आपने किसी मूवी में नाम सुना होगा, धुलिया करके. वहाँ से आगे 50 किलोमीटर से एक शहर है, शिरपुर करके. तो आई डिड माई कॉलेज देयर एंड आई डोंट हैव दोज फ्लैशी नंबर्स, नो फ्लैशी डिग्रीज. आई डिड माई BIT. 4 साल का कोर्स मैंने 5 साल में किया है. तो आई हैड अ ईयर ड्रॉप एज वेल. सो दैट इज़ नॉट समथिंग. सो व्हाट हैपन्स इज, हम लोगों को आदत होती है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा. वी सेल्फ डेप्रिकेट आवर सेल्व्स. एंड दैट इज़ अ रीज़न कि भाई आई वॉन्टेड टू डू समथिंग. आई वॉन्टेड टू प्रूव पीपल कि भाई tier 2, tier 3 वाले भी कर सकते हैं. इट इज़ जस्ट कि भाई बाहर आओ, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड शोकेस कि भाई आई एम हियर, आई कैन डू स्टफ. एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन फॉर पास्ट कपल ऑफ 40-50 years नाउ, राइट. माई फर्स्ट जॉब वो भी एक अलग ही मैस था. आई गॉट माई फर्स्ट जॉब आया कैंपस, बट वो कैसे मिला था, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. आई वर्कड देयर फॉर 10 years. 10 years? Yes, 10 years there, or more than 9.5, around 10 years. So worked in Pune, Mumbai, then moved to US for 3.5-4 years.
moved to Canada for a year, moved to UK for a year, and this was first wave of COVID. Then I came back. And I was wanting to move to Ahmedabad for some personal reasons actually, and I am active on LinkedIn, as you all are aware. Very well. So somebody reached out to me, Driyesh, like your skill sets match. Can we have a discussion? Actually, it was a startup in Ahmedabad, and वहीं से बात हुई. I came here, but things did not work out. And in the interim, same thing happened. मेरे पुराने एक्स बॉस का फ़ोन आया, क्या कर रहा है द्रियेश, थोड़ा सा लिए काम है. मैं बोला ठीक है, आ जाता हूँ मैं. I worked there. There was some reorg that happened, and then I was not happy with what I was doing. I was not contributing anything. And then suddenly somebody from IBM reached out. Okay, Driyesh, we have something for you. So this is the thing that when people reach out to you is when they are able to see you. तो वो कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकता है. Right. तो वो दिखाना ज़रूरी है. एक आता बहुत कुछ है मुझे, अगर मैं दिखाऊंगा ही नहीं, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी. वो मेरे लिए कोई वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा है वो. सो आई मेक श्योर इफ आई एम डूइंग XYZ, आई शोकेस दैट आउट. कुछ लोगों को आदत होती है भाई 10 किया तो 200 दिखाएं. वो भी नहीं, 10 किया 12-13 दिखाओ, दैट्स ओके, बट डोंट ओवर एग्जैजरेट. एंड दैट इज हाउ. सो आई यूजुअली डोंट स्पेंड टाइम ऑन माई रेज्यूमेस. मतलब मेरे को याद भी नहीं कि लास्ट रेज्यूमे मैंने कब बनाया था, कब रेडी किया था. Everything is out there. People have seen me at various events, at various workshops, events, etc. even in LinkedIn. So people know कि भाई what is his strength and weaknesses and what is he good at. So if they have something in mind, they'll directly reach out to me rather than me sending my resumes, customizing to 10 different customers and waiting for their interview. When people reach out to you, you always have the upper hand. Obviously. And that is what I want to be. And that is why I keep myself upskilled every time I know what is happening in the market. And that is how I came into that limelight of, okay, this is what or who we should look for if we are looking for a similar role actually. So Driyesh, you mentioned so many things like upskilling, people reaching out to you. So I am going to ask each and every question in very detail. ठीक है. You also mentioned that you live in US, UK, Canada. So वहाँ पे जो culture है, it's very different with respect to India. Like people are talking about work-life balance, mental health, and so many things. Indian culture is little bit like a hustler culture. Even you are working in a US-based company, right? So बड़ी कंपनी का जो कल्चर है वर्क लाइफ बैलेंस का, जो उनकी पॉलिसीज भी होती है, एंड हमारा इंडियंस का जो कल्चर होता है थोड़ा हसलर का, तो आप में कोई चेंजेस हुआ आफ्टर दैट? So I have this analogy, right? There is nothing called as work-life balance. I highly believe in that. Only life. हम लोगों ने वर्क उसमें डाला हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, आई डू दिस थिंग्स एवरी ईयर. 2 or 3 weeks आई गो बैक टू माई विलेज. मेरा गाँव यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है. विथ माई सन, माई वाइफ, आई स्टे देयर फॉर 2 weeks. वहाँ जाओ, ऐसा कुछ जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो बाकी है. देयर इज नो मतलब स्ट्रेस, नथिंग. आई वेक अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock, काम करो, शाम को 6 बजे लॉग आउट करो, बाहर बैठो, बात करो, रात को 11 बजे तक खेलो. सो व्हेन यू गो देयर, you already have the same work. You are living the same life. Here you are also the same. It's just your surroundings that change. हम लोगों को ये बनना है इसलिए हम ये कर रहे हैं. हम लोगों को किसी ने फोर्स नहीं किया है. दो है ना. सो मेरा बॉस है अभी, रिसेंट बॉस. सो उनका एक कोट है, देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन फॉर पीपल्स नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड. ये हम लोग सब हमारे लालचे कर रहे हैं. क्यों 12 घंटे काम कर रहे हैं? थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा. दिस इज ऑल आर ग्रीड. रोटी, कपड़ा और मकान सबके पास है. एग्री. मेरे पास है वरना मुझे चाहिए फॉर्च्यूनर. माई ग्रीड. नीड एंड वांट का फर्क है, वो फर्क है. एंड दैट इज द सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज इन द US, राइट, पीपल स्टार्ट देयर डे एट 6-7 o'clock. 8 बजे लोग ऑफिस में होते हैं. आई हैव सीन पीपल हैविंग देयर लंच ऑन द टेबल. दे हमारे जैसा नहीं होता कि 1 घंटा खाना खा के आए. नहीं होता उनका सुबह कॉफी का जो थर्मस बोलते हैं हम लोगों के, लीटर बराबर भर के बैठ जाते हैं. Until afternoon that last, डेस्क पे खाना खाया, 3-4 बजे शट डाउन. एंड देयर आर पीपल हु आई नो, अगर उनको ऑफिस छूटने तो कॉल भी करोगे, दे विल नॉट आंसर कि भाई आई एम ऑफ, कॉल मी टुमारो. हाँ, नॉट एवरीबडी, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट इन जनरल लाइक मोस्ट ऑफ देम. तो दैट इज द बैलेंस. वीकेंड्स आर प्लेजेंटफुल. देयर इज नो ये वाला जो है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दैट वी वर्क फॉर वर देयर. जो सर्विस इंडस्ट्री का जो कल्चर है, दैट इज द सेम कल्चर आई एम टॉकिंग अबाउट. बट व्हेन यू मूव टू द सेम इन प्रोडक्ट इंडस्ट्री, इट्स completely different terms of like product industry still has a hustler. वो स्टार्टअप वाला वाइब वहीं भी होता है
कि भाई सब कुछ तुम्हें ही करना है, सब कुछ बनाना है, डिलीवर करना है. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोडक्ट एज वेल. सो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, बहुत सब्जेक्टिव है. ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती एज पर माई नॉलेज. वो हम लोगों ने वो है ना बबल बनाया हुआ है कि यार वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है. तो बनाएगा कौन? हम ही बनाना है वो. 6 बजे आज मीटिंग मत लो, कस्टमर को बोलो कि भाई नहीं होना, या फिर यू डेलीगेट टू समबडी एल्स हु वर्क्स दैट आवर्स और शिफ्ट्स. इट्स जस्ट वी डोंट वांट टू, और हमें दिखाना है कि वी आर बिजी. Understood. That is what that bubble we have created. Even I work after hours, I work on my personal stuff after hours, but I don't crib about work-life balance. That is what I have chosen for myself. अगर मुझे कल चाहिए कि मैं बंद कर दूँ, I can stop. Understood. So that is all subjective. ये हमारे वो mental block हम लोग खुद बनाया है हमारे लिए. Understood. So Drijesh, let me give one example. जैसे कि पॉडकास्ट जिस सॉफ्टवेयर में एडिट होगा, राइट, वो कंपनी भी बाहर की है. आपके और मेरे पास जो फोन है वो कंपनी भी बाहर की है. इवन वॉट एवर ब्राउजर वी आर यूजिंग, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया. Correct. इंडिया इज ग्रोइंग, नो डाउट इन दैट. सो डू यू रियली थिंक दैट इंडिया का जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर बेस्ड माइंडसेट है? जैसे कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट भी बनाई तो क्या होगी कि किसी ना किसी उसका जो बेस होगा कोई बाहर की कंपनी का उस पर होगा, उसमें थोड़ा रेफर लगाया गया होगा इन दैट वे. सो डू यू हाईली बिलीव दैट इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट वर्सेस क्रिएटिव माइंडसेट ऑफ आउट ऑफ इंडिया कंपनीज? I think वो भी एक परसेप्शन है. ओके, So वहाँ पे भी जो लोग हैं वो भी इंडियंस ही हैं. नो डाउट. जो वहाँ पे जो बना रहे हैं वो Definitely, इंडियंस हैं. no It is doubt. just what happens is it is easy for us to consume something that is already made. वो बनाना from scratch, apart from technical know-how that we all have, but you also need that vision, that money behind that to make it happen. The first thing, right? And it is always easy to use something already made. वो baseline use करके you create on top of that. Yeah. That doesn't mean we don't have that expertise, that knowledge to build something on our own. And probably in the recent 10 years, I'll say, things have changed drastically, I'll say. We are moving from project mindset to product mindset. Because हम लोगों को क्या आता है ना कि भाई टास्क बेस्ड काम करना. We don't work on outcome, कि भाई इसका आउटकम क्या है, ये बोला गया यही करना है. Got बट it. इसका आउटकम क्या है? When we start thinking on outcome कि भाई हमें ये बनाना है, then this task can be done A, B, C, या फिर A, B से Z भी डायरेक्ट. लाइक फोकस ऑन सॉल्यूशन. हाँ, solution thinking is what we usually, because that is what हमें सिखाया गया, भाई ये बोला है यही करो. But when we start asking questions, तभी वो खुलता है कि भाई now we know what we want to do. वरना वो जो होता है ना घोड़े के चश्मे लगे होते हैं कि ये पहन के Yes. we are moving towards that. हमें बोला गया है आगे जाना, आगे जाएंगे हम. But when we remove that hindrance कि भाई आगे पीछे क्या हो रहा है and we start asking questions, then is when we move from that mindset. This is also mindset actually. कि भाई हमें जो बोला गया उससे वो करने से बेटर है we move to something else. कि भाई हम क्या कर सकते हैं, how can we contribute, how can we add value to that. And then when we moved from this member कि हम project to product, from task to outcome based approach, that is when we will move out 100%. It is happening now. People have अभी recently जो startup देखोगे, people have come out, छोटे छोटे ऐसे नाम भी नहीं सुनेंगे जो solutions बाहर आ रहे हैं, ऐसे problems tier 2, tier 3, tier 4 cities से भी solve हो रहे हैं. So people have now said कि भाई हम लोगों को ये नहीं करना है, we will do our own thing, this is the problem that we want to solve, and then they're going towards it actually. तो हर टेक्नोलॉजी का एक एरा होता है और ड्यू टू आप यू आर अ वेरी मच टेकी गाय एंड आपने वो दौर देखा हुआ है कि पहले जो टेक्नोलॉजी का शिफ्ट होता था वो ऐसा नहीं होता था कि एक साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. मतलब टाइम लगता था, 5 साल 6 साल 10 साल, उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आती थी और नया रिसोर्स होता था. So right now, as we know, before 1 year, ChatGPT is only for use to write an email and the messages. And right now, after the coming agentic AI and MCP, कोड भी वही कर रहा है, मैनेज भी वही कर रहा है, ऑटोमेशन सारी चीजें कर रही है. तो ये जो बदलता दौर है, हाउ डेवलपर कैन थिंक कि आफ्टर द 5 ईयर के बाद कौन सी स्किल जो है वो मैटर करेगी? I'll take you back to the history of this all technology, right? प्लीज. If you go back 20-25 years, जब इंटरनेट बाहर आया था, यस. अगर तुम उस टाइम रेज्यूम बनाते थे तो उसमें क्या लिखते थे कि आई नो हाउ टू यूज इंटरनेट. डेफिनेटली. करेक्ट. करेक्ट. उसके बाद आया कि आई नो हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल एक्सेट्रा. एक्सेल टुडे इज स्टिल अ बिग स्किल. आज के लोग क्या कर रहे हैं? आज के लोग लिखे आई नो हाउ टू यूज एन एप्लीकेशन ऑफ AI और जेन AI. आज हम लिखते हैं इंटरनेट यूज कर रहे हैं हम लोग? नहीं.
नेवर क्रोम आता है यूज करना है वी डोंट राइट इट द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन टू दिस बट वेरी फास्ट पेस जो जिस चीज को 20 साल लगे ये प्रॉब्लम ये 3-4 साल में 5 साल में कवर हो जाएगा बिकॉज द पेस इट इज इवॉल्विंग द पेस एंड इट इज अडॉप्टिंग एट अ लो लेवल एंड at organizations and government level as well it is exponential they are investing heavily on this right and that is the reason it will move very fast अभी आपने स्किल की बात की भी क्या स्किल होगा क्या नहीं होगा सो एक कोड है राइट विल एआई रिप्लेस ह्यूमंस आई हैव समथिंग टू दैट एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस हु एक्ट लाइक रोबोट्स ऑब्वियसली कि भाई मुझे बोला गया है मुझे ए बी सी डी करना है कॉपी पेस्ट करना है ये करना है अगर इफ आई कैन ऑटोमेट दैट व्हाई वुड आई स्पेंड दैट मनी ऑन अ पर्सन rather than automate it or do it via workflow इवन आज की तारीख में भी आई गॉट सो मेनी ईमेल्स जिसमें ब्रैकेट में लिखा हो कंपनी नेम नाम लिखा हो ओनली नेम तो हाँ एप्लीकेशन अलग अलग हो सकते हैं पीपल आर नॉट यूजिंग करेक्टली दैट इज ओके बट यही है कि भाई वो माइंडसेट भी चेंज करना है यहाँ पे कि लोगों को ये जो है डर जरूरी है ये डरना जरूरी है आई हैव अ कोट माई कोट एक्चुअली एवरीथिंग दैट यू ओवर वांटेड वाज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर डरना जरूरी है इसमें इवन आई स्टिल फेयर टुडे कि साला मेरा कोई 4-5 साल को एक्सपीरियंस वाला कोई बंदा मेरे जॉब ना ले जाए दैट इज व्हाई आई अपस्किल माई सेल्फ स्टे रिलेवेंट इन द इंडस्ट्री बट ऑल्सो मेक श्योर जो सोल्यूशन थिंकिंग है कि भाई अप्लाइंग योर स्किल्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वो कभी रिप्लेस नहीं होगा कभी वी अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स बेटर देन एनी टूल इन द मार्केट एनी एआई इन द मार्केट आप जाओ ChatGPT का बोलो कि भाई मेरे को ये रास्तों के खड्डों का प्रॉब्लम है या सिग्नल का प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है वो जेनरिक सोल्यूशन देगा बट दे विल नॉट अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक द कल्चर द एरिया लोकेलिटी वेदर एक्सेट्रा फॉर दैट यू हैव टू बी ऑन ग्राउंड वो रिसर्च हमें करना पड़ेगा एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज अ क्रिटिकल थिंकिंग एम्पथी सिंपथी दैट इज स्टिल वे टू फार इन एनी एआई मॉडल एक्चुअली सो यू शुड मूव फ्रॉम आई से कोडिंग आज के दिन में कोपायलट कर लेता है बट यूजिंग सो आई हैव अ टाइम टेक एनी एआई टूल एज अ स्मार्ट इंटर्न उसको गाइड करोगे ये करना है करके देखा उसको इंडिपेंडेंट डिसीजन करोगे वो टर्मिनेटर वाला एरा आ सकता है पॉसिबली बट अज्यूम के वो उसको ऐसे यूज करोगे दिस इज माई इंटर्न बहुत स्मार्ट इंटर्न है मेरा आई गिव इट टास्क ये करना है ऐसे करना है दिस इज द स्टेप्स एंड दैट विल डू इट परफेक्टली फॉर यू एंड दैट इज हाउ इट शुड बी यूज एंड दैट इज व्हाट we should upskill कि भाई how are we going to apply whatever we have the experience the technology the vast amount of study that we have done to use these technologies कोडिंग आज के दिन में आप बोल दो उसको भाई वेबसाइट बनाना है 10 मिनट बना के दे देगा कि ये डिज़ाइन बना के दे देगा बट वो फर्स्ट ड्राफ्ट जो डिज़ाइन मिला है आपको विल यू लाइक इट यू हैव टू वर्क विद द कस्टमर के यार उनका थीम क्या है उनका मैसेजिंग क्या है स्टोरी क्या है इमोशन क्या है उसका वैलिडेशन लाइक ऑल दोस थिंग्स वो नहीं देगा आपको आप उसको लिख के भले दे दो बट स्टिल इट नॉट गिव इट विल गिव यू 60-70-80% मैक्स वो 20% इज वेयर आवर स्किल विल स्टिल कम इन दैट ह्यूमन इंटरवेंशन इज स्टिल रिक्वायर्ड और वो 20% की स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी 80% आपको मिल जाएगा मार्केट से वो कोई एक सब्सक्रिप्शन ले लो किसी भी टूल का वो हो जाएगा बट 20% इज वेयर द ह्यूमन इंटेलिजेंस कम्स इन एक्चुअली सो ब्रिजेश वेरी क्विक क्वेश्चन हम कल ही डिस्कशन कर रहे थे 30-40,000 वाले 2 डेवलपर बैठा है और उसको एआई यूज करने दे दे या फिर एक से 1.5 लाख वाला एक बंदा ले ले उसको बोले तू सारा मैनेज कर व्हाट यू प्रीफर फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन व्हाट हैपेंस ये 2 ऑप्शन जो है ना दोनों डिपेंड करते हैं ऑन योर यूज केस व्हाट आर यू मेकिंग आप बोल रहे हो कि भाई 30-40,000 डेवलपर्स हैं उनका एक्सपीरियंस कम होगा ऑब्वियसली स्किल सेट थोड़ा सो उनको भी आपको बताना पड़ेगा अभी क्या करना है इनटू सम लेवल फॉर एग्जांपल उसमें भी आपने बोला कि फॉर एग्जांपल लेट मी टेक एन एग्जांपल यू वांट टू क्रिएट अ ई-कॉमर्स वेबसाइट दे विल नॉट हैव द डोमेन नॉलेज कि भाई मेरा कार्ट अबाउट कैसे चलेगा कार्ट में उसका कस्टमर जर्नी कैसा है राइट उसको स्टिल आपको या फिर किसको समझाना पड़ेगा सो दैट इज ऑल डिपेंड ऑन द यूज केस एक्चुअली अगर सादा फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक HTML वेबसाइट बनाना है देन दे कैन डू इट बट इफ़ यू नीड मोर डोमेन एक्सपीरियंस मैंने बोला 20% वाली बात है आप वो लोग बिठाओ जिनके पास वो 20% गैप फिल कर सकते हैं जो लोग इफ़ यू थिंक कि भाई आई वॉन्ट टू क्रिएट एन एंटरप्राइज एप्लीकेशन कि भाई फॉर एग्जाम्पल अडोबी लेवल की देन वो 30-40% से 30% नहीं होगा यू नीड समबडी हु हैज एन एक्सपीरियंस हु कैन फिल दैट 20% गैप जो गैप किसी भी एआई टूल ने किसी भी टेक्नोलॉजी ने छोड़ा हुआ है राइट तो वो जो आप रिसोर्स जो बिठाना चाह रहे हो जो इंजीनियर बिठाना चाह रहे हो मेक श्योर कि भाई दो आर क्वालिफाइड इनफ टू फिल दैट गैप वेयर यूर इंटरवेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड एल्स
ऑफ नो यूज अगर उनको वही करना है एंड यू हैव टू स्टेप इन एंड देन हेल्प और गाइड देम देन द सेम थिंग दैट विल हैपन. हाँ, उनको सिखाना भी जरूरी है बट एट नॉट एवरी लेवल 20% पूरा आप करो एंड देन दे सिट एंड उनका भी मेंटल ग्रोथ होना चाहिए उसमें कि भाई हाउ आर वी गोइंग टू यूज द टेक्नोलॉजी एक्चुअली. हमारा सॉल्यूशन जो हमने बनाया है, हाउ आर वी गोइंग टू अप्लाई दैट सॉल्यूशन टू मेक अ वैल्यूएबल आउटकम आउट ऑफ इट. Got it. मैं एक सिनारियो देना चाहता हूँ. रिसेंटली TST ने एक टूल लॉन्च किया कि जहाँ पे एज अ फाउंडर अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन राइट क्वेरी इन लेमन लैंग्वेज एंड इट विल आंसर यू बेस्ड ऑन योर करंट डेटाबेस. तो आपको अगर आपके पास डैशबोर्ड है एंड आपका डैशबोर्ड जो है रिपीटेडली डेटा दिखाता है बट सडनली कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आया तो आपको टेक टीम से बोलना पड़ेगा. टेक टीम विल रिप्लाई यू एंड वो साइकिल थोड़ी लंबी चलती रहेगी. तो वी ट्राई टू फिल आउट दिस गैप एंड हमने एक टूल बना दिया. तो इससे जो लेवल 3 वाले बंदे थे क्या उसकी जॉब चली जाएगी, रिप्लेस हो जाएगा? So that is a thing, right? अभी I'll give some truth bombs here actually here. ये डैशबोर्ड बने कब थे? जहाँ पे डेटा डैशबोर्ड था, जहाँ पे आपको डेटा दिखाना पड़ रहा था. आज के दिन में you don't need dashboards. First, जॉब तो उनकी भी जाएगी, but I'll come to that part actually. तो डैशबोर्ड्स were where we had to go and look for information कि भाई what can we make out of it. Nowadays you have solutions. कि भाई for example all the data that is accumulated insights जो जनरेट करनी है rather than showing graphical, it will show. For example, गुजरात रीजन का लास्ट क्वार्टर का सेल्स 8% डाउन है बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन. पंजाब हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस, राइट. और ड्यू टू दिस टैरिफ we might see some new incoming sales opportunities or RFPs might come to us. आप लोग डैशबोर्ड देखते क्यों हैं? इसी चीज़ के लिए, इसी इन्फॉर्मेशन के लिए. बट इफ इट कम्स टू योर इनबॉक्स एवरी मॉर्निंग देन यू डोंट नीड अ डैशबोर्ड फर्स्ट. नाउ दैट डैशबोर्ड हैज मूव टू एन इंटरफेस. API हो चुका है वो. इन शॉर्ट डेटा वहीं पे है. ये सिर्फ API डेटा लेके आ रहा है और आपके जो इजी पड़े, इट कैन बी योर व्हाट्सएप मैसेज, इट कैन बी टेक्स्ट मैसेज, इट कैन बी वट एवर इट इज, आपके ईजिली एक्सेसिबल एरिया पे लाकर छोड़ रहा है आपको. रादर देन यू गोइंग टू द डैशबोर्ड, द इनसाइट इज कमिंग टू यू, राइट. So first thing is, now this interface has to be written, has to be customized, has to be changed, has to be trained every day. Yes. और on frequent basis. This is where जो डैशबोर्ड वाले की जॉब गई है और जो इलेक्ट्रिक वाले की जॉब गई है वहाँ उसकी जॉब लगेगी. It is all about upskilling. अभी फॉर एग्जाम्पल जो लोग इंट्रोड्यूस करते थे 20 साल पहले, उनको आज बोलोगे तो नहीं होगा. वो सेम चीज़ नहीं है. इट हैज़ चेंज ड्रामेटिकली. राइट. एवरीबडी हैज अपस्किल. अब ऐसा बोलोगे जो 40 साल पहले जो इंजीनियर काम कर रहा था आज उसको बोलोगे भाई वैसे ही काम कर तो नहीं करोगे ना. दे हैव अपस्किल देयर सेल्फ. 10-15 साल पहले जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था जो 2G वाला, उसी स्पीड में आज करना चाहूँगा तो नहीं चलेगा वो. नहीं चलेगी. ये पॉडकास्ट पूरा देखने के लिए मुझे पूरा दिन डाउनलोड करना रखना पड़ेगा इसके लिए, इफ आई हैड टू, राइट. दैट इज द थिंग, राइट. वी हैव टू कंटिन्यूअसली अपस्किल आवरसेल्फ. दैट इज हाउ आई डू एक्चुअली फॉर आंसर क्वेश्चन. आई हैव अ टारगेट कि भाई फर्स्ट 6 months में आई हैव टू अचीव दिस मच, आई हैव टू लर्न दिस मेनी थिंग्स, एंड द नेक्स्ट 6 months आई विल, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंजिंग एवरी डे. पहले मेरा 1 साल था कि 1 साल में मैं ये करूंगा. नाउ आई हैव शॉर्टन इट. कोई 6 महीने में कुछ और नया आ रहा है, दैट आई शुड बी अवेयर ऑफ इट. Got it. So that is where how you pivot, how you upskill yourself and stay relevant in the market. And जो जॉब जाने का खतरा है ना वो थोड़ा कम रहता है because everybody has EMIs to pay actually. अगर मैं इसको थोड़ा रिलेट करूँ ना रियल लाइफ एग्जांपल से, सब वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे. लाइक अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 years ago इन इंडिया बैंकिंग में भी थोड़ा बहुत काम किससे होता था, पेन पेपर से. देन एरा कम जब कंप्यूटर्स आए. देन अगेन वन मोर एरा कम जहाँ पे ATM आया. आई स्टिल रिमेंबर कि स्टार्टिंग के टाइम में कुछ 15-20 रुपए उससे कट भी होते थे ATM से, अगर आप पैसे विड्रॉ करते हो. यस, दैट टाइम. देन नेट बैंकिंग कम, थोड़ा टिक 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 करो, 4-5 क्लिक करो. राइट नाउ इट्स UPI. तो अगर आप डेटा देखोगे 30 साल पहले का, जितने लोग बैंक में काम करते थे, जितना बिजनेस बैंक का था और जितनी ब्रांचेस थी, आई एम 100% श्योर, मुझे डेटा पता नहीं है लेकिन वो सारा का सारा डेटा आज उससे ज्यादा ही होगा. 100%. इट्स अप टू यू कि हाउ यू अडॉप्ट दैट. So वही है ना, इफ यू वांट टू यूज एनी AI टूल टुडे इन द मार्केट, AI की बात है, इट इज ऑल डेटा ड्रिवन. डेटा के ऊपर ही बना हुआ है. इफ देयर इज नो डेटा यू कैन नॉट डिराइव एनी इनसाइट्स. डेटा इज द न्यू गोल्ड, राइट. वो you might have heard it, right? So and whoever is sitting on that gold mine will convert it to diamond. वो है ना, वो I'll quote somebody कि यहाँ से सोना डालो उधर से डायमंड निकलेगा. आपने चुराया. मैं बोल रहा हूँ, आई एम कोटिंग somebody else, this is not my original. डेफिनेटली. तो अगर हम टैलेंट के बेसिस पे अगर हम 3 कैटेगरी बनाए कि जूनियर डेवलपर हो गया, सीनियर डेवलपर हो गया और आप जैसे टेक लीड्स हो गए, तो
आप लाइक सीनियर लेवल पे और टेक लीड पे तो अभी देयर इज अ चांस कि अभी टाइम लगेगा उस एआई को उस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो राइट नाउ ऐसे कौन सी स्किल है इन 2025 जो लेवल 3 पे जो है उनको अडॉप्ट करनी चाहिए और करनी ही पड़ेगी? सो मेरा एक ये है कि भाई यू शुड ऑलवेज हैव द फंडामेंटल्स ऑफ एनीथिंग स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटल्स ऑफ अ प्लेटफॉर्म। इट कैन बी लिनक्स, मैक, विंडोज, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट साइड की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी पाइथन, जावा, .NET एंड वन क्लाउड टेक्नोलॉजी। ये तीन चीज़ें आर द बेसिक्स फॉर एनी इंजीनियर हु वांट्स टू लुक फॉर अ जॉब इन टुडेज मार्केट। रादर बिकॉज क्या होता है ना, यू कैन ईजिली मूव बिटवीन क्लाउड्स languages. If you understand and know one programming language, it's easy to switch between others. Same for platform. But अगर तुम्हें एक का बेसिक ही नहीं होता है and if you directly move to something else, it is very difficult for you to understand and grasp that. तो ये चीज़ें generic है for everybody. Now because of this current era that we are in, I'll not say how you create an LLM or a model, but how does it work first. Got it. Because अगर आपको पता है वो कैसे काम करता है, then उससे कैसे काम करवाना है वो आपको पता चलेगा. Agree. And then out of that, how do you apply that to your problem statement? मैं वही बोल रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग भाई यू नीड टू बी टेक्निकल, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई वो गैप, हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक टूल, हर एक गैप फिल नहीं कर सकता. देर आर निशेस. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. एक प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाता है. वी ऑल नो दैट. ओके, वेरी वेल. हाँ, तो उसको बोलोगे कि भाई मुझे ग्राफिक डिज़ाइन करके दे, वो करेगा, बट नॉट व्हाट वी वांटेड. इट इज मेड स्पेसिफिक टूल. सो इफ यू अंडरस्टैंड कि भाई एक प्लेटफॉर्म, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस किसके लिए बनी है एंड हाउ इट वर्क्स, देन ओनली यू कैन यूज इट फॉर योर ओन बेनिफिट. एंड दैट इज वेयर टुडेज इंजीनियर्स हु आर पासिंग आउट और हु आर लर्निंग टुडे, दे शुड अंडरस्टैंड कि भाई कौन सा गैप कैसे से फिल करना है. अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया राइट, अगर मुझे गांधीनगर से यहाँ आना है, आई विल टेक द मेट्रो. मैं उसके लिए हेलीकॉप्टर या रिकॉर्ड लेके नहीं आऊँगा यहाँ पे. ओवर इंजीनियरिंग की जो बात होती है ना कि पीपल वांट कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने अभी आई वाज जजिंग अ हैकाथन एक्चुअली. फनी स्टोरी. तो एक यूज केस था, समबडी क्रिएटेड एआई पावर्ड क्लॉक. हाँ, हंसने वाली बात है ये. मैं क्लॉक में आया क्या था? हाँ, मैं वही ओवर इंजीनियरिंग की बात होती है. लोग बताना चाहते हैं कि मुझे आता है तो मैं यूज कर रहा हूँ, बट वहाँ पे जरूरी है क्या? अगर मैं अहमदाबाद में फरार लेके आऊँ, शौक है, बट इज इट वायबल कि मैं वहाँ पे चला पाऊंगा वो 200 की स्पीड से जो चलानी चाहिए उसको? नहीं चला पाओगे. मेरा या तो नीचे बम्पर से घिस जाएगा या फिर आगे से वो चलाना आएगा मेरा. राइट, उठ भी सकता है. हाँ, ऑब्वियसली आज के सिनेरियो में है, आई डोंट वांट टू गो देयर, बट यस. सो ओवर इंजीनियरिंग इज समथिंग दैट वो है ना, पीपल वांट टू शोकेस देयर स्किल्स एंड दैट इज व्हाई दे ओवर इंजीनियर. बट एक और एक स्टेटमेंट है कि भाई इट इज वेरी सिंपल टू क्रिएट समथिंग कॉम्प्लेक्स, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट समथिंग सिंपल. राइट. अगर जिसको पता है कि भाई डिटेल फंडामेंटल्स पता है ना, दे आर द वंस हु कैन क्रिएट सिंपलर थिंग्स. फॉर एग्जांपल किसी भी ऐप का फ्लो बनाना है, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करना है, 1000 चीज़ें क्लटर करके फायदा नहीं है उसका. मिनिमल सिंपल चीज़ में कि भाई हाउ वी कैन मेक द कस्टमर जर्नी वेरी इजी इज व्हाट वी वांट टू गिव. और वो सिंपल करने में ही वो एक्सपीरियंस, वो मेहनत लगती है. कॉम्प्लीट करने के लिए तो आप बोलो कॉम्प्लीट करना है, अभी सब लोग कर देंगे. So those skills are what are required in the market, and that is where today's engineers should lean towards actually, apart from the basic requirements of any development or developer or engineer. Got it. अभी जो AI का ट्रेंड है, you and me both know कि AI किस डायरेक्शन में जा रहा है. But what about the non-tech business owner की जिनके पास अगर आप जाओ उनके पूछोगे कि right now AI is this, वो बोलेंगे क्या हो रहा है, सच में से होता है? कुछ नहीं होगा, हम तो बिजनेस करते आ रहे हैं, बिजनेस हमारा चलता रहेगा. व्हाट डू यू थिंक कि उनका So ये ट्रेंड जो है ना, आप जो बोला हमारा चलता रहेगा, दे आर अफ्रेड नाउ. सो आई डिड अ सेशन, एक पीपल माइट हैव हर्ड, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए. सो मैंने उनको बताया था कि भाई हाउ आर यू डूइंग योर बिजनेस आज के दिन में. बोलता है बहुत थोड़ा कॉम्पिटिशन है. मैं बोला क्यों है? बोलता है दे आर गिविंग इट चीपर. बिजनेस, लेगेसी बिजनेस, अंडरस्टैंड मनी. राइट. मैंने बोला व्हाट इफ आई शो यू समथिंग दैट कैन सेव यू 5 lakhs a year. बोलता है अभी बताओ. मैंने सिर्फ चैट जीपीटी दिखाया था लाइव. मैंने पूछा आपका क्या करते हो आप? बोलता है मैं लॉयर हूँ. मैंने बोला ये यूज़ करते हो? बोलते नहीं. मैंने दिखाया उनका पूरा केस हिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स क्या है वो पूरा आके गया. मुझे जिसमें बात करना है. सेकेंड वॉज कॉन्ट्रैक्टर था, बिल्डर था. दे क्रिएट प्रोजेक्ट प्लान्स मैन्युअली, जो पूरे बिल्डिंग के प्रोजेक्ट बनाते हैं. मैंने बोला क्या बना रहे हो स्पेसिफिक कि भाई 2000 स्क्वायर फीट का घर है, ये लैंड है, इधर है, ये है. स्पेसिफिक डाल दिए मैंने. पूरा प्रोजेक्ट प्लान इन एक्सेल रेडी इन द नेक्स्ट 10 minutes. ठीक है. अदर वॉज इन मैन्युफैक्चरिंग. तो ये जब यूजर्स को दिखाया मैंने,
बोलता ये भी पॉसिबल है। मैं बोला ये पॉसिबल है, आपके कंप्यूटर्स ये यूज़ कर रहे हैं इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है आपको। चीप क्यों पड़ रहा है? अगर आप साल का 5 लाख, मैं तो बता रहा हूँ इन जनरल, बट पीपल आर सेविंग। देयर इज अ डॉक्टर एक्चुअली हु यूज्ड टू रिसर्च एंड फाइंड थिंग्स, बहुत बड़े डॉक्टर है, डायरेक्टर है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हॉस्पिटल के। ही केम टू मी, अरे ब्रिजेश यार तुम्हारे उस सेशन के बाद लाइक इट हैज़ ओपन टाइम टोटली, मतलब वो पूरा ना पैंडोरास बॉक्स ओपन हुआ है मेरे लिए। मैं हर महीने कुछ ना कुछ नया रिसर्च कर रहा हूँ, राइटिंग पेपर्स, जो मुझे 1 साल लगता था पेपर लिखने के लिए, मैं आज महीने भर में पेपर लिख रहा हूँ। मैं माई रिसर्च स्पेस आई इंक्रीज्ड। आई एम अ साइंटिफिक एडवाइजर फॉर IVF फर्म ऑल्सो, तो आई हेल्प देम, लाइक उनके पास डेटा बहुत सारा है टू फाइंड द एक्यूरेसी फॉर IVF अगर कराना है तो उसका प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी कितना आएगा कि भाई दिस इज व्हाट द डेटा शोज, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कि भाई देयर इज 70% एक्यूरेसी, देयर इज प्रोबेबिलिटी कि भाई दिस विल सक्सीड। सो दे आर सिटिंग ऑन डेटा बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई इसको यूज करना है। लेगेसी बिजनेसेस जो लेगेसी बोल रहे हैं, लेगेसी इज 40, 50, 20 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। डेटा है, डिजिटाइज नहीं है, मैनुअल है, बट दे स्टिल हैव द डेटा। सो यू जस्ट नीड टू ब्रिंग दैट डेटा। वो स्कैन करो, PDF हो, दैट डजंट मैटर इन टुडेज एरा। वो पहले ही था कि भाई डेटाबेस में चाहिए, नाउ इट इज ब्लॉब हो, कुछ भी हो, पढ़ा रहो, फर्क नहीं पड़ता। इफ यू कैन यूटिलाइज दैट डेटा, इट इज द नेक्स्ट गोल्ड माइन इंडियन लेगेसी बिजनेस सिटिंग ऑन, एंड दैट इज नाउ व्हाई दे नीड टू मूव टू द डिजिटल एरा नाउ। ओके, तो इन नॉन टेक फाउंडर्स के लिए मैं अगर उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप बताना चाहोगे तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब इन टर्म्स ऑफ यस, उनको अगर डिजिटलाइजेशन और न्यू ट्रेंड का उनको अपने करंट बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट करना है, व्हाट कैन बी स्टार्टिंग? लुक एट योर कॉम्पिटिटर्स फर्स्ट, व्हाट आर दे डूइंग, राइट? आई वाज टॉकिंग टू फाउंडर एक्चुअली, दे स्टार्टेड, उनका 2 साल पुराना है, एंड दे वांटेड टू फाइंड सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आल्सो। तो मैंने उनको एक चीज़ बताया कि भाई इफ वॉट एवर यू आर डूइंग, इफ इट हैज़ ऑप्शंस देन डोंट डू इट। अगर कोई ऑप्शन नहीं है देन दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। Convert an, if there is no option available, convert an opportunity. For example, I'll say smart ring, मैं पहनी हुई है ये स्मार्ट वॉच। ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं पहले, लोग फोन में से कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं था, किसने उसको अपॉर्चुनिटी बनाया कि ये है, बट आई डोंट वांट टू वेयर एवरी डे स्मार्ट वॉच। किसने ऑप्शन दिया, ऑप्शन नहीं है वो स्मार्ट रिंग का, मैं वो बनाता हूँ। सो अगर कोई ऑप्शन नहीं होती ना, देन यू कन्वर्ट टू एन अपॉर्चुनिटी। अगर देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, then you see if you are the best in it, if you are faster in it, or if you provide more value amongst your competitors actually. Now once you find that out, अभी manually जो तुम्हारे competitors कर रहे हैं, if you want to do the same thing then it's okay, but if you want to stay ahead of the curve, then find out what are the gaps in what they are doing. जो है ना value added, फ़ोन सभी बनाते हैं, हर एक कंपनी बोलती है we are the best, फ़ोन सभी है, OS चलता है, कॉल होता है, सब होता है, but the value that you add is your USP. Your USP sells your phone. डेफिनेटली एग्री। कोई फोन बोलते हैं मेरा बैटरी 5000 6000 mAh का है, कि फॉर एग्जांपल फॉर इफ आई वांट अ लॉन्गर बैटरी लगा, इट्स यूएसपी फॉर मी। सम सेज हमारे फोटोज बेटर है, हम लोग मून का फोटो ले लेते हैं, दैट इज एन यूएसपी। सम फोन सेज वी आर द मोस्ट सिक्योर फोन ऑन द planet, that is their USP. Now what your customers want to buy is this USP. They don't want to buy a phone. Right. So what service are providing always have a USP. They will look at your USP and then your portfolio later. This USP is always the hook that will sell your whole solution or service or product. So craft your USP in such a way, take help from technology available, do that research. Research is always important. Use tools, technology, and if you find कि भाई यहाँ पे AI can be used better, use tools. अगर नहीं है, don't over engineer. So Drijesh, mostly we notice like in this AI era, MNC है, बहुत सारा काम है, ओके वो AI को किस तरह से लेती है, स्टार्टअप से वो किस तरह से लेते हैं। मोस्टली स्टार्टअप्स आर फोकसिंग ऑन समथिंग लाइक दैट, ओके अच्छा बंदा बिठाओ, 2 AI टूल दो, 3 AI टूल दो, मैक्सिमम आउटकम निकालो। MNC है तो उसको बहुत सारा सोचना पड़ेगा कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, तो उसमें फिट स्ट्रक्चर किस तरह से फिट करे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह हो गया, डेटा सिक्योरिटी का ध्यान रखना हो गया। So in this era, what is the MNC versus startup adoption? So I'll give you an example, right? तो स्टार्टअप में क्या होता है ना, स्टार्टअप्स आर नोन फॉर देयर फास्ट डिलीवरी, No doubt. correct? No doubt. But when you move to enterprise, they care about the speed, but their main point is stability and scalability. Because they are not now consumer tools, they cater to millions and billions of people. They are enterprise now, right?
सो ये दो माइंडसेट, ये जो चीज़ें फ़र्क है. सो नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हाट वे, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बैंक को बोलो कि भैया स्टार्टअप का बनाया हुआ है, फास्ट शिप कर दिया और उसमें कोई काम नहीं कर रहा है, दैट इज बिग प्रॉब्लम, राइट? बट affect lot of people व्हेन यू use टॉक टू कर- MNCs, हाँ वहाँ पे डिले होता है, इट टेक्स टाइम, बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑफ स्टेबिलिटी कि भाई इफ आई रिलीज समथिंग, इफ आई पुट इट इन द मार्केट, हाउ स्टेबल इट इज before my next release comes in. First, second is how scalable it is, because they are solving the problems for world. Millions of people. Startups का क्या है, generally when they start, they are starting problems for a certain for a smaller organization or somebody else, but MNCs are solving problems for the world. That is where that scalability also comes in. कि भाई ये बना है, will it be able to scale? And these are the two different. Both are correct at their place. They are not wrong. Depending on the use case, what we are building, this both can run parallel, and they are running the ecosystem moving forward. These startups, when they grow bigger, they also adapt the same thing. आज जो एंटरप्राइज है, सालों पहले वो स्टार्टअप ही था. Right. वो रातों रात एंटरप्राइज कभी बना नहीं, MNC कभी भी नहीं बनी है. They started there. It is just now because the priorities have shifted now. Because they were solving a problem for a certain people, niche of people. Now they're solving problem for the world. That is when they moved that mindset from building fast to creating something stable and scalable. Got you. तो आई थिंक बहुत ये हो चुका है. लेट मी आस्क समथिंग वेरी पर्सनल स्टोरी. अच्छा. यार आपके नाम का कॉल आ रहा है मुझे कि ब्रिजेश को जानते हो कि नहीं, उससे बात करवाओ. Perfect. So this kind of scams are happening. So Then LinkedIn ID चेक हो रहे, मतलब आई सीन इन द मार्केट वेल नोन. हमारे टीम में से भी किसी का हुआ था. Then we are getting emails like आपकी और हमारी टीम को हो गया, तो भाई बॉस के नाम से ईमेल भेज दिया टीम को. Even Parth, your account is also hacked, right? LinkedIn account. अच्छा, really? Yes, it was around 2 years ago, 1.5 or 2 years ago. Two-factor authentication is there. Still. Still. I am not using any extension. I don't know how. I'll shed some light on that actually. Please. सबसे So पहले what is आपका कॉल happening बंद now? कराओ. What is happening? So अभी क्या हो रहा है ना? What is happening is because technology has come into everybody's hands now. तो ये डेटा जो है, हम लोग बोलते हैं डेटा पड़ा हुआ है दुनिया में, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी गोज टू माई लिंक्डइन, इफ यू हैव कमेंटेड ऑन माई पोस्ट, दे नो कि भाई यू एंड आई रिलेटेड, यू एंड आई नो ईच अदर. Probably. Agree? Probably. सो दिस हैपेंड. मेरा मतलब आई हैव लंच विद माई फ्रेंड एवरी डे. उसको मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, और उसके 2 दिन पहले ही मैंने कुछ इंस्टा में डाला होगा, उसने मैसेज किया था, मतलब उसने कमेंट किया था कुछ. दे फाउंड आउट देयर आर सम लेडी, दे रीच आउट टू हिम कि मैं ब्रिजेश की नीज हूँ, आई एम नॉट एबल टू रीच हिम, कैन यू लेंड मी सम मनी और एक्सेट्रा. मैं प्रॉब्लम है. उसने मेरे को फ़ोन किया. मैंने बोला मेरा ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं, ऐसा कोई नाम को जानता भी नहीं मैं, राइट? बट दिस इज द ट्रेंड, राइट? इफ पीपल फाइंड कि यू आर कनेक्टेड टू मी वाया इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक एक्सेट्रा, दे कैन ईजिली गेट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. आज के दिन में कॉन्टैक्ट डिटेल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. आप एक डेटाबेस डाउनलोड करो, 10 मिलियन नाम का आज भी मिलता है. यूजिंग दैट, वो ये नाम का, अच्छा ये इधर फ़ोन नंबर है, चलो फ़ोन करते हैं. एंड देन आपको पूछेंगे डू यू नो ब्रिजेश? यस, ठीक है. अभी नाउ आपके प्रोफाइल पे दक्षेश ने मैसेज किया हुआ है, दिल कॉल का दक्षेश, डू यू नो पार्थ? तो वो ट्री बना रहे हैं कि ब्रिजेश इज कनेक्टेड टू पार्थ, पार्थ इज कनेक्टेड टू दक्षेश एक्सेट्रा. वो पूरा ट्री बन रहा है. वो लोग भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. अगर इन 100 के चेन में एक भी मिला, उनका आज का दिन का टारगेट खत्म हो गया. आज के दिन में इफ यू चेक एनी न्यूज़पेपर, डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल फ्रॉड के ऑलमोस्ट 4-5 केस आपको रोज मिलेंगे, इन लैक्स, इन करोड़ एक्सेट्रा. बिकॉज वी आर नॉट अवेयर कि भाई क्या सच है क्या झूठ है. भरोसा किस पे करें हम लोग? मेन थिंग इससे बचे कैसे? बच्चे, सो ऑलवेज डबल चेक. ओके. ऑलवेज डबल चेक. फॉर एग्जाम्पल दक्षेश का फोन आया, तुम्हें मैसेज आया कि अरे यार प्रॉब्लम है, पैसा डाल दे. कॉल टू दक्षेश ना. दक्षेश ने मैसेज किया है तुम्हें, उसको तुम कॉल कर सकते हो. कॉल दक्षेश कि ये है. ऑलवेज हैव सम थिंग्स कि भाई जो आप दोनों को पता हुआ है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती. कंफर्म दैट. मैंने पहले, इससे पहले भी मैं कहीं पे था तो आई सेड समझो ना, मुझे मेरा फ़ोन आता है कि भाई मेरी वाइफ अननोन नंबर से, सेम आवाज़ थी, बैकग्राउंड नॉइज था, अर्जेंसी थी. दैट्स इज हाउ दोस डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड एक्चुअली. कि भाई ब्रिजेश गुजराती में था कि मैं कहीं अटकी हूँ, 25,000 ट्रांसफर करो मुझे. एंड हमारा होता है फैमिली वाला किसी मुसीबत में हो
वॉइस भी उनका ही था वो वॉइस 50-60% सेम ही था Similar to. बिकॉज वो बैकग्राउंड नॉइज इतना होता है, अर्जेंसी होती है ना कि भाई यू डोंट concentrate on that voice, you concentrate on the urgency actually. And now I think using AI, it's possible to copy your voice easily. अरे 100%. तो उसके भी आता हूँ हाउ इट इज डन एक्चुअली. तो ये आया, मैं 2 सेकंड में सो जाऊँ, देन आई रिमेंबर कि मेरी वाइफ तो ऊपर शायर ले रही है. ये होता है. नाउ हाउ आर दिस वॉइस मॉडल्स क्रिएटेड? एक तो जेनरिक होता है डेटा सबका. सेकंड इज फॉर एग्जाम्पल आपको कभी अननोन नंबर से फोन आया, आपने उठाया, सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, हेलो कौन बोल रहा है, क्या चाहिए, कौन बात कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? ये डेटा आपका रिकॉर्ड हो रहा है फोन में. रिकॉर्ड हो रहा है और उसने उस पे ट्रेन कर दिया मॉडल. It's happening with me many times. हर रोज सभी के, आप एक साथ me नहीं, also. दुनिया भर के लोगों से हो रहा है. इसलिए व्हेन यू पिक अप अ कॉल, डोंट आंसर फर्स्ट. Wow, that's a great advice I take. डोंट आंसर फर्स्ट. सामने से बोले, सामने वाले ने फोन किया, राइट, क्या है, कौन बोल रहा है, वो बोलेगा पार्थ, हाँ कौन बोल रहा है, वो बिकॉज दिस आर ऑल बॉट्स कि भाई डायरेक्टली कॉल करो, उठाया, ऑडियो रिकॉर्ड करो, मूव टू द नेक्स्ट नंबर. दिस आर बॉट्स, देयर इज नो ह्यूमन देयर. आपको व्हाट्सएप मैसेज आते होंगे कि भाई आपका 5 लाख का लोन अप्रूव हो गया, लिंक पे क्लिक करो. आता होगा, व्हाट्सएप पे भी आता है, एसएमएस भी आते हैं, आपको 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, जॉब ऑफर करते हैं. जो ऑफर करते हैं. वो तो अभी थोड़ा पुराना ट्रेंड हो गया, अभी तो नया ही चल रहा है कि 10 साल पहले आपके पापा ने 50,000 म्यूचुअल फंड में डाले थे, अभी वो 3 लाख हो चुके हैं, उसको रिडीम करना है तो कर लो. अरे आई वॉज टॉकिंग टू समबडी यस्टरडे, तो उनको फ़ोन आया था कि हम लोग कस्टम डिपार्टमेंट बोलते हैं कोलकाता से, आपके ड्रग्स पकड़े हैं हमने, ठीक है, तो आपको आना पड़ेगा. बोलते कहाँ पे, कोलकाता. बोलते आप कहाँ से बोल रहे हो, पुलिस स्टेशन. बोलते आप समन्स भेज दो मुझे, आप नोटिस भेज दो, मैं आ जाऊँगा. बोलता है नहीं हम लोग कोर्ट जा रहे हैं. बोलता है ठीक है आप कोर्ट चले जाओ, उधर समन्स भेज दो. जिसको फोन किया था वो एडवोकेट था. I think they need to train some model some next level. At बट least देखो change अगर job बिकॉज दैट पर्सन अंडरस्टूड कि भाई क्या हो रहा है, इसलिए. बट पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड दे गेट स्केर्ड. ऐसा कुछ आता है, मुझे आता है कि भाई आपका जो फोन है दिनेश से बात कराओ. सेम थिंग केम टू माई बॉस कि भाई दिनेश फोन नहीं उठा रहा है, तो मैंने कॉल किया. मुझे बोलते हैं आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आओ. मैंने कहा क्यों व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आऊँ, आपको मेरे से बात ही करें ना, मैं बात कर रहा हूँ. बोलते हैं हम कंफर्म करना चाह रहे हैं. कंफर्म करना मुझे आके मिलो ऑफिस. ऑफिस नहीं मिलना है, मुझे भरोसा नहीं है, आओ पुलिस स्टेशन आओ, वहाँ पे मिलते हैं हम. सो व्हाट दे डू इज व्हेन यू कम ऑन अ व्हाट्सएप कॉल, आपका ऑडियो वीडियो फेशियल एक्सप्रेशन, दे आर ट्राइंग टू रिकॉर्ड एवरीथिंग. दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट. आप नहीं फंसे तो कोई और फंसेगा. सो व्हाट आई डू इज, एक तो ये फ़ोन वाला, मेरे फैमिली का एक व्हाट्सएप ग्रुप है 25-30 लोगों का, कि भाई अगर कोई भी ऐसा कुछ लगता है कि सस्पिशियस है, वो ग्रुप पे डालो. अनलेस एंड टिल आई और समबडी अप्रूव्स इट कि भाई हाँ ये सही है, डोंट टच और डोंट बी एनीथिंग. बिकॉज आई हैव, मेरी फैमिली है, मेरे इन लॉज है, मेरे कजिन्स हैं हु आर नॉट वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट मार्केट ट्रेंड. जो पढ़े लिखे हैं वही फंस रहे हैं, जजेस फंसे हुए हैं, लॉयर्स फंसे हुए हैं, पुलिस इंस्पेक्टर, डॉक्टर्स फंसे हुए हैं. ऐसा नहीं कि नहीं फंस रहे हो, नो डाउट वो भी फंस रहे हैं. तो इट इज ऑलवेज गुड टू डबल चेक. डाउट होना चाहिए. नेवर ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीथिंग. Got it. और मुझे ये भी लाइक जो ये हैकर्स है वो इतना इजीली डेटा निकाल पा रहे. दिस इज अ प्रॉब्लम कि प्रोडक्ट डेवलपर नॉट फोकसिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी पार्ट. और ऐसा नहीं, आपका डेटा इतना फैला हुआ है ना, वो जरूर नहीं है आपके किसी लॉगिन से डेटा आ रहा है. मैंने फॉर एग्जांपल आप अभी किसी मॉल के बाहर जाओ, थिएटर जाओ, आते हैं ना सर लॉटरी, वो वाउचर निकालेंगे, लकी ड्रॉ में आप नंबर नाम लिख के दे दो, राइट. वो डेटा कहाँ जा रहा है? वो आप ही ने भर के दिया ना कि मेरा नाम पार्थ है, ये मेरा नंबर है, ये मेरे ईमेल आईडी है. ऐसे एक जगह पे वो दिन के 200-500 रिकॉर्ड लेता होगा. ऐसे उसके से हजारों लाखों लोग हैं अक्रॉस इंडिया जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. ये क्या हो रहा है? आपको एक ईमेल आया, आपने उसको रिप्लाई किया, भले स्पैम और रिप्लाई किया, ईमेल आईडी चला गया, कंफर्म कि भाई ये बंदा सही है. इसलिए कभी रिप्लाई नहीं करना चाहिए उसके भी. इफ यू डोंट नो समवन, डोंट रिप्लाई. गॉट इट. अगर कुछ होगा तो वापस आएगा, कोई फोन आएगा, मैसेज आएगा, ईमेल आएगा. तो ये वही चीज़ है कि भाई हमारा डेटा इतना फैला हुआ है. आप अभी फॉर एग्जाम्पल आपका नाम सर्च करो, आपको वैसा वैसा जगह मिले. फॉर एग्जाम्पल कॉलेज का डेटा है, कॉलेज की वेबसाइट से फॉर एग्जाम्पल कुछ अवार्ड मिला होगा, कुछ मिला होगा, वहाँ पे डेटा पड़ा होगा. इफ आई फाइंड माई सेल्फ, मेरे कॉलेज के कोई मार्कशीट का नाम पड़ा हुआ डेटा कि दिनेश पटेल, रोल नंबर ये था, इसके मार्क्स ये है, देयर ऑल्सो देयर. कुछ किया था मैंने, कोई इवेंट, उसका डेटा है. सो आवर डेटा इज एवरीवेयर. इट इज जस्ट कि हम लोग बस वी आर इन द डिजिटल एज, वी हैव टू बी देयर. सो ये एक कौन है कि भाई डिजिटल एरा में इफ़ यू आर आउट देयर, वो मेरा पहला मार्केट योरसेल्फ, उसका नुकसान ये है.
कि भाई अगर आप मार्केट अपना खुद कर रहे हो देन यू आर द पब्लिक डोमेन, पीपल हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, गॉट इट. पीपल नो यू, आपका फोटो, आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ है. सो ऑलवेज मेक श्योर जो पब्लिक डोमेन में है वो पब्लिक में ही रहे. वो फोन नंबर बैंक्स के मत यूज़ करो, वो ईमेल आईडी पर्सनल कम्युनिकेशन मत यूज़ करो. एक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एट एनी इवेंट, मेरा फोन नंबर और ईमेल आईडी वो है कि भाई जान दो, देर इज नथिंग टाइड टू दैट, गॉट इट. स्टैंड अलोन है वो फोन रात को स्विच ऑफ करो, देर इज नथिंग हैपनिंग. मेरा बैंक का आधा वो देर इज डिफरेंट नंबर ऑल्सो. सो फॉलो दैट प्रैक्टिस. गवर्नमेंट बोलती है आपको एक 10 नंबर देंगे हम लोग, तो यूज़ दैट. बैंक्स के लिए अलग रखो, फाइनेंशियल्स के लिए अलग रखो. डोंट लिंक एवरीथिंग. अगर किसी नंबर पे फ़ोन भी आ रहा है जो पब्लिक डोमेन में है, देन इट इज ऑल ओके. वो दैट इज नॉट कनेक्टेड टू यूपीआई. उसको बोलोगे ट्रांजेक्शन होना नहीं है उस पर कुछ. सो ये चीज़ें हैं ना, वी ऑल्सो हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स एंड आवर इमीडिएट इकोसिस्टम, फैमिली, फ्रेंड्स एक्सेट्रा कि भाई दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज हाउ यू शुड स्ट्रेंथन योरसेल्फ और सिक्योर योरसेल्फ. ये आपने जो भी सोर्स अभी बताए वो ऐसे सोर्स है कि जहाँ पे अनकॉन्शियसली हम डेटा शेयर कर देते हैं हुक की वजह से. एंड नाउ आई एम आस्किंग फॉर कि प्रोडक्ट ओनर पे अगर साइबर सिक्योरिटी का और मतलब सिक्योरिटी कंप्लायंसेस का ध्यान नहीं रखें तो बहुत बल्क डेटा ब्रीच हो जाएगा. तो एज अ प्रोडक्ट ओनर, लाइक जस्ट एज अ लाइक आई स्टार्टेड माय स्टार्टअप रिसेंटली एंड ड्यू टू it's a startup, I have not lots of fund to get this kind of certificate and do the cyber security work. But to make sure कि जो मेरे audience है उनका data safe रहे, which kind of step they need to make sure from the first day? And question number 2 कि उनको कब completely cyber security compliance हो जाना चाहिए as a product? So when you design a product, right, कि डेटा जितना चाहिए उतना ही लो. फर्स्ट थिंग, Okay. स्टार्ट फिल्टरिंग एट द वेरी बिगनिंग. कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बिल्डिंग अ गैलरी ऐप, गैलरी का ऐप बना रहे हो, आप इंस्टॉल कराते हो तो बोलते हो भाई लोकेशन का एक्सेस दो, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट्स. क्यों चाहिए? अगर आप वो ले रहे हो एक्सेस, देन यू हैव टू मेक श्योर इट इज सिक्योर. सो फर्स्ट प्रिंसिपल कि भाई लो ही मत जो चाहिए नहीं हो, जितना जरूरी है उतना ही डेटा लो. फर्स्ट. सेकंड, एनक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट. ये दो चीज़ें जो वेरी इजी है, कॉस्ट एसेंशियली कॉस्ट लगता नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव है दोनों चीज़ें. Got it. नाउ व्हेन वी मूव टुवर्ड्स दैट कॉस्ट वाला बात कि भाई अगर पैसा नहीं है, इफ़ यू आर यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म, एट रेस्ट हो या फिर इन ट्रांजिट हो, उसका इंक्रिप्शन होता है करा लेने का. क्लाउड है, देन फायरवॉल्स है, बैस्टियंस है, बिहाइंड क्लोज डोर्स डेटा पड़ा हुआ है. नाउ देयर आर DPDP एक्ट है, GDPR है, वेयर इट कैन नॉट मूव आउट ऑफ द सेम कंट्री ऑल्सो. डेटा अगर मूव, यू कैन नॉट मूव कंट्री टू डेटा टू डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर, राइट. सो दैट कम्स के इसके लिए भी यू डोंट नीड मनी फॉर दैट. योर डेटा सेंटर इज हियर, दैट्स इट. बट जो एडिशनल कॉस्ट वाले बेनिफिट आते हैं कि डेटा सिक्योरिटी की बात आती है कि वेयर इज इट स्टोर्ड, उसका एनक्रिप्शन लेवल क्या है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की बात आती है, क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज वेयर दैट कॉस्ट कम्स इन. बट बेसिक इफ यू फॉलो दिस थिंग्स, बेसिक जब प्रोडक्ट बन रहा है तब से ही कि भाई मैं क्या डेटा कलेक्ट करना है मुझे. इफ आई एम कलेक्टिंग ओनली द मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड, देन आई हैव टू ओनली सिक्योर द मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा. फर्स्ट उधर से फिल्टर हो गया तुम्हारा. तो वो जो कॉस्ट आगे बढ़ना है वो बढ़ेगा ही नहीं पहले. फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज नो PII, PHI, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हेल्थ इन्फॉर्मेशन, देन ऑलरेडी वो सिक्योर ही है. वी डोंट नीड मच देयर. बाकी डेटा ऑलरेडी पब्लिक है, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पब्लिक है, आपका नाम पब्लिक है, आपकी एज पब्लिक है. सिर्फ PHI और PII डेटा सिक्योर करना है, वो अगर हम कलेक्ट नहीं कर रहे, यू डोंट नीड दैट. तो वो ऑलरेडी वो जो कॉस्ट की बात आई, कंप्लायंस की बात आई, यू आर ऑलरेडी देयर. देन Got it. डिपेंडिंग ऑन द डेटा दैट यू आर कलेक्टिंग, वो कंप्लायंस एप्लीकेबल होता है. Got it. So for the example, I started a startup. मैंने encryption और सारी चीज़ें यूज़ की, but somehow कि मैं कोई deployment cloud ऐसा यूज़ कर रहा था कि वहाँ कैसे कोई breach हो गया, या तो फिर मेरे developer के कोई AI tool यूज़ कर रहा था और उसकी वजह से कोई breach हो गया और मेरे environments variable leak हो गए और मेरा database decrypt हो गया. So इस सिनारियो में एज अ प्रोडक्ट ओनर उनको क्या स्टेप लेने चाहिए कि उनको पता चलेगा कि उनके डेटा ब्रीच हो सके? इज देयर एनी गवर्नमेंट पेनल्टी is applicable for this kind of activities? Yes, if you are a registered company, as per laws, if there is any breach, you have to notify the authorities. Okay. And as per DPDP Act अभी जो एक 2023 में फर्स्ट रफा है, 2025 में नया आएगा अभी, depending on the organization etc. there are crores of penalties involved. Oh my God. मतलब मल्टी crores, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, सिंगल डिजिट. Is it based on data are breached? Yes, it is also based on that. So वो है ना सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन, एक तरह से प्रिंसिपल सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन कि व्हेन यू आर डिजाइनिंग समथिंग मेक श्योर इट इज सिक्योर फ्रॉम द बिगिनिंग. हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई डिज़ाइन करते हैं, बाद में अगर सिक्योरिटी क्या करनी है इसको ऐसे बॉक्स बना देते हैं. Right. यू स्टार्ट एट द वेरी बिगिनिंग व्हेन द प्रोडक्ट इज बीइंग डिजाइन्ड.
Security from start from there actually. Got it. Then all these issues that are happening, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, but very minimal. क्यों होगा? I'll tell you. As per global survey, 94% of any breach, any attack happens, or any data is leaked because of human negligence. We are the biggest culprit. और बाकी 6% जो है उसके लिए हमारे पास टूल्स, टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस हैं. That can fight that. 94% कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी हम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, हम दोनों बातें कर रहे हैं, अरे यार मैं ये वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ये है, आपने सुन लिया, अरे ये कंपनी तो ये वर्जन पे है और उसमें ये वल्नरेबिलिटी ऑलरेडी है वो लाइब्रेरी में, लेट एक्सप्लॉइट. वही चीज़ कि भाई फॉर एग्जाम्पल टोकन डाल दिया गिट रेपो पे, की डाल दी गिट रेपो पे, प्रैक्टिसेस. दैट इज अ ह्यूमन एरर. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा एक्सटेंशन डाउनलोड कर दिया जो पीछे बाइट बाय बाइट डेटा भेज रहा है, पैकेट बाय पैकेट डेटा भेज रहा है. दिस हैज हैपेंड एक्चुअली. आई नो दिस इंस्टेंस वेयर जो किसी ने क्रोम में एक्सटेंशन डाला था, राइट. और वो कंपनी का पूरा डेटाबेस पैकेट बाय पैकेट, बिट बाय बिट चाइना के सर्वर में चला गया है. ओह माय गॉड. तो ऐसा नहीं हमें पता नहीं था सिर्फ, बट ये क्योंकि एक पैकेट एक बीट बाय बीट जा रहा है ना, वो we are not नेटवर्क में हम able लोग को notice. उतना ट्रैक कोई नहीं करता, बट वो मालूम पड़ता है बाद में जब वो बम फटा है, तब मालूम पड़ता है अरे ये हुआ है हमारे साथ. तो ऑल्सो मेक श्योर कि वट एवर यू आर इंस्टॉलिंग यू नो कि भाई उसको क्या एक्सेस दे रहे हैं, उसके सर्वर्स कहाँ पर, बिकॉज वी आर टेक्निकल पीपल राइट, वी अंडरस्टैंड दैट. यस. एट लीस्ट फ्रॉम अस दिस इज नॉट एक्सपेक्ट कि भाई हम लोग को पता ही नहीं है. अगर हम लोग को एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहे हैं, कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, इसके मतलब कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, फॉर एग्जांपल इसके डेटा सेंटर्स किधर है, डेटा कैसे शेयर हो रहा है, डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, ये डेटा कैसे यूज होगा फॉर एग्जांपल. सो वंस वी आर अवेयर ऑफ दिस देन वी कैन इनकॉर्पोरेट कि हाँ नो वी डोंट वांट टू यूज दिस, वी वांट सर्टन थिंग्स इन सर्टन वे एंड दैट इज हाउ वी वांट टू यूज इट. Okay. So like, is there any way to prevent this penalty, or this is must? This is the नहीं, must? इफ देयर इज एनी ब्रीच फर्स्ट स्टे काम, इसमें मतलब वो कुछ नहीं हो सकता, डैमेज इज डन. सेकेंड, अगर इफ इट हैज़ हैपन टू सर्टन पार्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ऑफलाइन ले लो सो इट डजंट मूव लैटरली, डेटाबेस से वेब सर्वर पे ना आ जाए. मतलब लैटरल एक्सेस मिल सकता है उसको, भाई डेटाबेस पे इफ दे ट्राई मूव टू लैटरल एक्सेस के भाई यहाँ पे आ गया, कोई क्लाउड पे चला गया, किसी और डेटाबेस चला गया, बिकॉज दिस इज अ होल नेटवर्क, हमारा पूरा एनवायरमेंट राइट, खत्म हो जाए. तो उसको पहले ऑफलाइन कर लो फर्स्ट. सेकंड, थर्ड, स्टार्ट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज एंड योर स्टेक होल्डर्स Okay. कि भाई ये हुआ है. बाय लॉ एवरीबडी, एवरी कंट्री हैज़ दैट, हर एक के अपने टाइम फ्रेम्स और अलग है, बट इट इज़ देयर, यू हैव टू इन्फॉर्म दैट Okay. कि भाई ये क्यों, देन यू डू एन आरसी के क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यू डू एन ऑडिट. सर इसलिए आज के दिन में छोटी कंपनीज भी सिक्योरिटी ऑडिट कराती है अपने, इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी. भाई ये कोई सिक्योरिटी बुलाया इंडिपेंडेंट, यू डू योर ऑडिट Got it. एंड यू फाइंड आउट कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, एंड इफ देयर इज ऑल ओके देन दे गिव सर्टिफिकेट, देन वी आर गुड. Right. ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट इन जनरल बेसिक चीज़ें वी आर सिक्योर. सो ये हो गई कि एक एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले सिक्योरिटी के बारे में सोचना ही पड़ेगा, अगर वो यूजर का डेटा ले रहा है, सेंसिटिव डेटा ले रहा है. करेक्ट. बट ओके, सो ये प्रोसेस आपने पूरी कही. एज ए यूजर मुझे पता चला कि मेरा अकाउंट यहाँ पे है और ड्यू टू दिस प्रोडक्ट उनका डेटा ब्रीच हुआ है. आई एम नॉट अवेयर कि उन्होंने इन्फॉर्म किया नहीं किया. सो व्हाट स्टेप आई नीड टू डू टू सिक्योर देयर इज अ वेबसाइट जो फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर अपना ईमेल आईडी डालो. ओके. इट विल शोकेस कि भाई अक्रॉस द ईयर्स ये ईमेल आईडी कौन से डेटाबेस के ब्रीच में फाइंड आउट हुआ है. फॉर एग्जांपल आई वाज इन द यूएस तो टारगेट का डेटा ब्रीच हुआ था, किसी और कंपनी का डेटा हुआ था, तो उसमें डेटा ब्रीच में मेरा डेटा गया हुआ है, पासवर्ड मतलब ईमेल आईडी और डिटेल्स गए हुए हैं. सो इट सेज कि भाई क्या क्या टाइप का डेटा गया हुआ है, क्या क्या ब्रीच हुआ हुआ है. सो इफ यू वांट टू ट्राई दैट कि भाई यूजर ईमेल आईडी जनरली जो यूज करते हो, इट्स ओपन सोर्स. इट्स ओपन वेबसाइट है. ओके. यू गो देयर, यू पुट योर ईमेल आईडी है जितने भी ईमेल आईडी यूज करते हो, Got it. एंड इफ देयर वाज एनी ब्रीच इट विल फाइंड आउट कि भाई ये ब्रीच में ये ईमेल आईडी गया हुआ होगा. क्या नाम बताया आपने? आई विल शेयर इट आफ्टरवर्ड्स. ओके. डिस्क्रिप्शन में डाल देना. डिस्क्रिप्शन. श्योर. सो इवन पीपल कैन यूज इट. या. तो ये मालूम पड़ता है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ डेटा, फॉर एग्जांपल सिर्फ नाम और ईमेल आईडी गए हुए हैं, या फिर आपका पासवर्ड पर एनक्रिप्टेड था तो भी शेयर हुआ है, देन दैट फॉर दैट वेबसाइट गो नाउ एंड चेंज द पासवर्ड. सो वो चीज़ आपको पूरा दिखाएगा, ड्रिल डाउन करेगा, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, कौन सा डेटा कब गया था एंड कितने लोगों का गया था, कि 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, एंड देन यू टेक करेक्टिव एक्शंस आफ्टर दैट. ओके. Got you. So Drijesh, you are working in very big organization, right? And I am sure you work on so many products, and that is generating multi-million dollars of the revenue as well. So अगर कोई MNC होती है, वो अगर प्रोडक्ट बिल्डिंग का काम स्टार्ट करती है, अगर उसे कोई नया प्रोडक्ट बनाना है,
तो व्हाट इज देयर रिसर्च स्टेप? जैसे कि हमें तो क्या होता है कि चलो हमें ऐसा आइडिया आया, हमें लगा कि चलो हम ही किंग है मार्केट के, थोड़ा कंप्यूटर मिला नहीं तो चलो बनाना शुरू कर देते। Yes, एक टेक पार्टनर लिया, कोटेशन दिया, पैसा है पड़ा है जेब में, चलो स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते। लेकिन हाउ जो ऑलरेडी बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि IBM हो गया, गूगल हो गया, तो वो उनका प्रोसेस क्या रहता है? So what happens is ना, there are two approaches. एक तो top down होता है, एक bottom up होता है. So I'll give the idea of how both things work. If there is a bottom up, for example, I have a developer or engineer, उसके पास कोई प्रोडक्ट आइडिया आया अच्छा कि भाई हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है, उसने कोई POC बनाया, दिस इज अ गुड आइडिया. नाउ जो है ना, एक ऑनियन होता है, प्याज होता है, उसके लेयर्स होते हैं. देयर आर लेयर्स फॉर एवरीथिंग. जो फर्स्ट लेयर होता है ये कि भाई जल्दी फटाफट काम हो जाता है, ये कि भाई फर्स्ट लेयर कि भाई दिस इज वेरी फास्ट, लाइक अ स्टार्टअप कि भाई आइडिया आया, POC किया, वी आर रेडी. नाउ इट गोज टू द इनर लेयर्स जहाँ पे लीगल, कॉस्ट, कंप्लायंसेस, स्टेक होल्डर्स आते हैं. नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग कि भाई दिस प्रोडक्ट दैट यू हैव डेवलप्ड, ये कोई नया प्रोडक्ट होगा या फिर एग्जिस्टिंग में ही कहीं फिट होगा. दैट इज द फर्स्ट थिंग. नाउ इसके यूजर्स कौन होंगे? एंटरप्राइजेस हैं, B2B है, B2C है, B2C है, एक्सेट्रा व्हाटएवर इट इज, राइट. दैट डिसीजन हैपन्स, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इसका प्रोजेक्शन क्या है, विजन क्या है, हमारी कंपनी के विजन से अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लीगल क्या है इस पे, कि आर वी अलाउड टू बिल्ड दिस. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज MNCs हैव डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, डिफरेंट कंपनीज एक्चुअली, आर वी अलाउड टू बिल्ड दैट फर्स्ट. सो ये चीज़ें होती हैं व्हेन यू गो बॉटम अप इन एन MNC. टॉप डाउन में दिस ऑलरेडी इज टेकन केयर एंड दिस थिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. जितना बनाने में नहीं लगता उतना उसको सोचने में लगता है, राइट. बिकॉज यू आर बिल्डिंग फॉर द वर्ल्ड. यही चीज़ मैंने शुरू में बता रही कि वेन, तो वो पूरा डेटा रिसर्च एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग कि भाई वी वांट टू एंटर इनटू दिस मार्केट. वो मार्केट रिसर्च, स्टडी, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, GTM, प्री सेल्स, सेल्स, लीगल, वो सब कुछ वो रेडी होता है उनके लिए बिफोर इवन दे स्टार्ट डेवलपिंग एनी प्रोडक्ट, और दे स्टार्ट पैरेलली एक्चुअली. बट स्टार्टअप में क्या होता है ना, बिकॉज हमें बोला गया कि ये मोबाइल ऐप बनाना है, हम बनाना शुरू कर देते हैं, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग भाई ये क्या करना है, उसका क्या करना है, राइट. फिर व्हेन यू गेट अ पेनल्टी और एनी कॉपीराइट, देन फिर हम थीम चेंज हाँ, कर चेंज लेंगे. कर लेंगे. हाँ, दैट इज हाउ इट वर्क्स. दैट इज अ थिंग. वो देखो, ये दिस इज अ अप्रोच. मैंने बताया ना कि भाई फ्रॉम माइंडसेट है कि भाई फास्ट एंड स्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी. द सेम थिंग इट वर्क्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑल्सो. उसी के लिए बना हुआ है ये कि भाई फास्ट के लिए वी कट कॉर्नर्स. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं दोनों एक स्टार्टअप है और एक MNC है, दोनों एक, फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ किसी बैंक का, बड़ी बैंक का वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, ये लोग भी बना रहे हैं, इसके पास टाइम कम था, ठीक है, इसको जल्दी डिलीवर करना है, उसने API एंड पॉइंट ओपन रख दिया, पब्लिक कर दिया, ठीक है. इन लोगों ने पूरा सोचा, टाइम लिया, ये इसी कंपनी A ने 6 महीने में कर दिया, इन लोगों ने 2 साल लिए, बट 6 महीने में रिलीज हुआ, फर्स्ट दिन ही क्रैश हो गया, हैक हो गया, API एंड पॉइंट ओपन था, की मिल गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट व्हेन दे रिलीज्ड देयर वर इश्यूज, बट वो UI मेजर कॉस्मेटिक थे. गॉट इट. दैट डिड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस. यूजर साइड से भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैसेजिंग ऐप है और मैं अब कर रहा हूँ, ये थोड़ा 2-3 बार क्लिक करने ओपन हो रहा है, दैट इज स्टिल ओके. बट बैंकिंग ऐप में अगर मैं पे कर रहा हूँ, या फिर कोई स्टॉक ब्रोकिंग ऐप है और मैं 10 बार दबा रहा हूँ, उतने मेरा वो अमाउंट चला गया, देन इज इट गुड? सो डिपेंडिंग ऑन दैट यूज केस ऑल्सो, दैट वो पूरा चेंज होता है उसका भी. सो MNC कोई होती है, राइट. सो उनकी GTM स्ट्रेटेजी क्या रहती है? लाइक स्टार्टअप तो क्या करेगा कि सोशल मीडिया को प्रमोट करेगा, एड चला देगा, ट्राई टू फाइंड अ पार्टनर इन दैट वे. सो हाउ यू पीपल तो ऑफर लगा देगा कि एक का एक रेफरल लेके आओ, लाइफ टाइम डील. सो क्या होता है ना, बिकॉज ये दोनों के ऑडियंस अलग है, नो डाउट. फॉर स्टार्टअप्स, अगर आपके ये सब GTM करके यू गेट 100 कस्टमर, यू आर हैप्पी. बट इन MNCs, इवन बिफोर गेटिंग द GTM, राइट, जो कंप्लायंस वाली बात आती है कि भाई अगर किसी कंपनी मेरा परचेज करेगी कुछ, आर वी कंप्लायंट, आर वी सिक्योर, लीगल कोई ऑब्लिगेशन है या नहीं, ये सब चीज़ें पहले होती हैं, इवन बिफोर दे रीच दैट GTM स्टेज. बिकॉज दे आर सेलिंग टू द वर्ल्ड, राइट, तो वो पहले वो देखते हैं भाई ये बेसिक है ये उनके लिए. आफ्टर दैट आता है सेल्स वाला पार्ट, प्रीसेस वाला पार्ट, कि भाई GTM स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी, हमारे Fortune 100, Fortune 1000 कस्टमर्स कौन होंगे. Here 100 customers and here 100 customers are totally different. Agree, definitely. Right? तो स्ट्रेटजी इट इज फर्स्ट, जो हम लोगों के लिए यहाँ पे जो एड ऑन है कि भाई कंप्लायंस, सिक्योरिटी, लीगल एक्सेट्रा, दैट इज द बेसिक देयर. दे स्टार्ट फ्रॉम देयर एक्चुअली, मेजर MNCs. कि पहले ये सोचो कि भाई अगर हमें बोलना है, Fortune 100 कंपनीज नहीं चलाएंगी ये सब चीज़ें,
उनके कस्टमर्स वो हैं फॉर्चून 100 फॉर्चून 500 कंपनीज। ऑब्वियसली। अगर मैं कल माइक्रोसॉफ्ट को जाके बोलूँ कि भाई मेरा ये ऐप है तुम ले लो, बोलेंगे भाई आर यू कंप्लाइंट, सर्टिफिकेशन है, GDPR DPDP कंप्लाइंट हो, लीगल अप्रूवल है, उसके बाद वो सोचेंगे भी लेना है नहीं लेना है। वी आर स्टिल नॉट इन द क्यू येट, गॉट इट। ये चेकलिस्ट में नहीं बैठते। तो दिस इज अ चेकलिस्ट आइटम, बेसिक आइटम। उसके बाद में डिस्कशन के प्राइसिंग GTM वो अलग बैठता है कि भाई व्हाट आर वी शोकेसिंग, हम लोग क्या बेच रहे हैं, USP क्या है, वो स्ट्रैटेजी बाद में बनती है। पहले वो चेकलिस्ट में बैठना चाहिए कि चेकलिस्ट में बैठना है नहीं बैठ रहा है, एंड वंस इट सिट्स देन ओनली ये सब बाकी बात है। सो Drijesh, with that we also talk about previously regarding IP. तो जरा हमारे ऑडियंस को बता दो कि IP क्या होता है और बड़ी बिग MNCs IP से बिजनेस कैसे करती है। So IP is called intellectual property, patents है, innovations है, etc. whatever you create, and once you have a patent, अगर कोई similar company कोई और इंसान अगर इसी चीज़ बना रहा है, they have to give you royalties or depending on what legal structure that you work with them actually. The test is just this idea is yours, nobody can steal it, and if they want to use it then they have to pay you. Basic simple English language में है ये, right? क्या होता है ना, हम लोग इतना फास्ट बनाना चाह रहे हैं कि वी डोंट थिंक अबाउट बिल्डिंग दैट कैपेबिलिटी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम, रिसर्च, मनी। ऐसा तो है नहीं कि कोई पेटेंट आज मतलब आज सोच रहा हूँ मैं आइडिया कर बना दूंगा, ऐसा नहीं होता ना। इट टेक्स, ये सब चीज़ लगती है, देयर इज अ कॉस्ट एंड एफर्ट इन्वॉल्व विद दिस। एवरेज कितना टाइम लगता होगा एक पेटेंट रजिस्टर करने में? डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च, केस स्टडी, क्या कर रहे हो आप। लाइक मिनिमम कोई ड्यूरेशन? ऐसा ड्यूरेशन डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी ऑल्सो कि किस चीज़ बना रहे हो आप। ओके। आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, द टीम दैट यू आर वर्किंग विद, योर लीगल पार्टनर, बिकॉज पैटेंट लिखना इज डिफरेंट थिंग। यू हैव लीगल हु वर्क्स विद यू, पैटेंट लॉयर्स होते हैं जो बनाते हैं, गॉट इट। एंड देन यू सेंड इट। सो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन दिस प्रोसेस एक्चुअली, बिकॉज ऑफ ऑल दिस पीपल्स इन्वॉल्वमेंट एंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट, टाइम एंड मनी रिक्वायर्ड। जनरली यार कितनी मेहनत आता है हमें, बट इतना खर्चा कौन करेगा। सो वी डोंट बिल्ड आवर आर्सेनल कि भाई हमारे इतने 10 15 20 25 पैटेंट है, IPs है, कि शोकेस के भाई वी आर इनोवेटिव, वी डू इनोवेशन एट स्केल एट द वेरी बॉटम लेवल बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। वेर एज बड़ी कंपनी का क्या होता है ना, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम डे टू डे वर्क दे ऑल्सो हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कि भाई हाउ कैन वी ऐड मोर वैल्यू, हाउ कैन वी क्रिएट न्यू। अगर कोई सोचता ही नहीं ये चीज़ें, अगर किसी को पैसा डालना नहीं, रिसर्च करना ही नहीं है, तो ये जो इनोवेशन होता ही नहीं था। राइट। Because somebody thought about it, and because this IP will not give you fruit today. ये वो पेड़ है जो 5 साल 10 साल बाद आपको फल देगा। मे बी सिर्फ आइडिया आपका है और इनोवेशन किसी और लेके आया है उसके ऊपर। तो वही है, तो ये ना ये लॉन्ग जर्नी, ये विजन वाली बात आती है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट IPs, यू आर टॉकिंग अबाउट विजन कि भाई 5 साल 10 साल बाद का सोचो कि भाई हाउ कैन आई मेक, फॉर एग्जाम्पल हाउ कैन आई मेक IoT सिक्योर। ये 10 साल 5 साल बाद की बात आएगी, बट आएगी ये। इफ यू आर सॉल्विंग problems or if you're doing solutions for that today, then that is where the value comes in कि भाई आज IP बना के छोड़ दिया, आज मेरा पेटेंट है इसका, 5 साल 10 साल बाद इसका फल आएगा मेरे पास। ऐसा नहीं है कि आज पेटेंट आया कल से चलो पैसा आ रहा है अकाउंट में, ऐसा नहीं होता। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हमें कोई बड़ी कंपनी का, किसी IT सर्विस कंपनी को कोई बड़ी कंपनी का वेंडर ऑफिशियल बनना है तो कैसे बन सकते हैं? लाइक सम पीपल आर वर्किंग विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यू नो। करेक्ट। सो मैंने इससे पहले की आंसर दिया, राइट? उनका चेकलिस्ट है ना हमारे एड ऑन से शुरू होता है। टू मच, मतलब बहुत से एवरग्रीन 4-5 कंप्लायंसेस कौन से होते हैं मोटा मोटी, वो बता दीजिए। कंप्लायंसेस, सभी कंप्लायंसेस, ISO सर्टिफिकेशन, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा लॉज एक्सेट्रा, जो भी आता है आपके, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट ऑल्सो और सर्विस ऑल्सो, यू शुड बी कंप्लायंट इन एनीथिंग एवरीथिंग। फर्स्ट सिक्योरिटी की बात आती है, सेकंड बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड इफ दे आर वर्किंग विथ यू, देयर डेटा इज ऑल्सो शेयर्ड विथ यू एक्सेट्रा, सो हाउ सिक्योर इज योर एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा। थर्ड इज लीगल, कि भाई ये प्रोडक्ट यूज़ करके आर वी ब्रेकिंग इन लीगल लॉज और कंट्री लॉज और जो यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सम थिंग्स, सम कलर, सम फॉन्ट, सम एक्शंस यू नॉट यूज ऑफ कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल, एंड इफ इट इज अ ग्लोबल प्रोडक्ट आर वी कंप्लायंट देयर। सो एक तो होता है कि भाई रीजनल, देन यू हैव स्टेट, कॉन्टेंट वाइज भी कुछ कंप्लायंस मैनेज कर रहा है कि नहीं, और लीगल है क्या नहीं हमारे पास, आर वी कवर्ड एवरीवेयर। वंस दिस इज डन, देन वो बात है चेक कर नाउ, चलो बात करते हैं कि चलो क्या करना है अभी इसका। अभी एग्रीमेंट कर देते हैं, एग्रीमेंट की बात तो दूर की बात है, अभी चलो ये करता है, व्हाट इज द यूजर्स, टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा उसका। फर्स्ट इज टेक्निकल इवैल्यूएशन कि भाई इज इट फिट, हम लोग जो खरीद रहे हैं, विल इट हेल्प और एड वैल्यू फॉर अस और आर कस्टमर्स एक्सेट्रा, इफ वी आर गिवन टू आर कस्टमर्स एक्सेट्रा। अगर हमें ये स्केल करना होगा, सपोर्ट फंक्शन क्या है, व्हाट इज आर अवेलेबिलिटी, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारा SLA क्या है, हम लोग क्या दे रहे हैं उन्हें,
देन पैसे की बात बाद में आएगी कि भाई हाँ ये हो गया, चलो ना पैसे की बात करो, कितना % डिस्काउंट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या प्लस माइनस कर सकते हैं, वो पैसे के बाद में आती है फॉर बिगर कंपनीज एक्चुअली, बिकॉज दे वांट टू सी इफ एवरीथिंग फिट्स, ये सब चीज़ें फिट हो गई, हाँ देन वी कैन टॉक अबाउट कि हाँ अगर हो रहा है देन वी कैन नेगोशिएट देयर कि भाई करना है नहीं करना है, कितना करना है, बट अगर यही फिट नहीं है तो पैसे की बात का फायदा ही नहीं है। उनकी लाइफ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बेचूँ शू बेचूँ, आपका फुट साइज 9 है, मैं बोलूँ मैं आपको 7 और 10 का देता हूँ, बट 10 रुपये दे रहा हूँ आपको शू, ले लोगे आप? अगर आपको यूज ही नहीं है उसका तो वो चीज़ है ना, मुझे 9 नंबर का चाहिए, मैं 7 और 10 नंबर का पहन के फायदा नहीं, मुझे होगा भी नहीं, एक होगा नहीं और एक मतलब वो एक लंगड़ी करके जाना पड़ेगा मुझे, वो वाली बात है एग्जैक्टली। तो ये चीज़ है, वो इवैल्यूएशन होने के बाद, फिजिबिलिटी होने के बाद, देन ओनली पीपल कम टू दिस अप्रोच। उनकी लाइफ साइकिल काफी लंबी होती है। लंबी होती है बिकॉज वही है ना कि भाई इट इज अ लॉट डिपेंड, अगर उनमें से एक गलती होती है, It will एक cost एक you एक millions. न्यूज़ बाहर आई, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट का प्राइस उनका कल ड्रॉप होता है, स्टेक होल्डर्स उनके इन्वेस्टर्स कितना लॉस हो सकता है, प्रॉब्ली यू नो बेटर। Yes. Actually, we are working with one public sector bank. We are official vendor of them. So उनकी टीम मेरे घर पे भी जाके गई और उन्होंने ऐसा भी पूछा कि घर में अर्निंग पर्सन कितने, ऑफिस विजिट की, मेरी डिग्री भी मंगवाई, 50-60 दूसरे डॉक्यूमेंट भी मंगवाए, एंड इवन गोइंग टू माय होम एंड आस्किंग माय मॉम अर्निंग पर्सन कितने हैं। Because these are financial requirements. When you are working with any financial institution, right? Then कुछ रिक्वायरमेंट उसके भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पासपोर्ट ले रहे हो तो आते हैं ना घर वेरिफिकेशन करने के लिए, हाँ कि Yes, yes, police The verification. same thing happens for, because there is financial. You are not handling your money. You are handling the world's money. Right. Your solution, your service will interact with the world's money somewhere. कुछ हैंडशेक है कहीं पे. That is the reason this regulations are required actually. Yes. मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ये क्वेश्चन है कि मैंने स्टीव जॉब्स की बुक में पढ़ा था कि उन्होंने टच की स्क्रीन वाला आइडिया जो बिटमैप से चुराया था, बिकॉज ही फाउंडिंग फर्स्ट टच स्क्रीन, एप्पल नहीं लाया था। तो क्या ऐसा कभी होता है कि सम यूनिक आइडिया व्हेन यू पिच टू एमएनसी और वो ड्यू टू दिस काइंड ऑफ वैलिडेशंस वो अच्छा। आपका आइडिया चुरा लेगी, ऐसा कुछ होता है? So that is where this IP comes in. सामने वाला कितना आराम First, से- if you have everything, इसलिए लीगल है ना कि भाई हमारा प्रोडक्ट है, ये सोल्यूशन है, ये सर्विस है, दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड, इस पे हमारा IP है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा व्हाटएवर वी हैव। So like founder need to register first, then approach to at least apply, don't get it. Got it. Once you apply कि भाई हाँ हमने इस दिन अप्लाई किया, we have documentary proof there. You are secure. Got it. You are secure now. उसके बाद कुछ भी कर लो आप, कोई चुरा नहीं सकता, बिकॉज वो पेटेंट ऑफिस में पड़ा हुआ है, IP ऑफिस में पड़ा हुआ है कि भाई इन लोगों ने ऑफिशियली इस दिन अप्लाई किया हुआ है, पेपर का आया हुआ हमारे पास। Got it. उसके बाद आप किसी भी कस्टमर को रिच आउट करो, राइट, उसके बाद बनाते हैं जो फेसबुक का हुआ वही चीज है। फेसबुक का अगर इफ यू हैव सीन द होल Yes, मूवी, yes. Social dilemma movie. तो वो दिखेगा उसमें भी। Got तो it. पेपर वर्क इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि भाई आप अपने है ना बेसिस कवर कर रहे हो, देन वी आर गोइंग पब्लिक। Yes. ऐसे ही मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मुझे ये बनाना है, तो ऑब्वियसली वो कोई भी चुराएगा। That's agree. So if you have an idea, work on it, make it strong, have some paperwork documented, कुछ IP, कुछ लो, and then go on to the market. So if you have that fear of this being stolen or it's a novel idea or niche है, then you should do this first. खर्चा होता है, बिकॉज वी आर इंडिया में, गुजराती हूँ, आई एम ऑल्सो गुजराती, पैसे की बात आती है भाई क्यों खर्चा करना है, बट इस थोड़े अमाउंट के अगेंस्ट अगर मेरा मिलियंस का डील बच रहा है, then वो खर्चा करना जरूरी है। Definitely. तो वो सोच इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। So Drijesh, you are doing a job, right? So you mentioned you mentor to so many people, give so many talks, you have so many awards as well. You have very good personal brand, and that is the main reason we are connected somewhere. Correct. So even as an employee, why you are doing this? Like अगर सपोज कि आप ये नहीं करोगे, आपके तो जॉब सिक्योर ही है, एंड राइट ना अभी आपका एक्सपीरियंस भी इतना हो चुका है कि आपको दूसरी जगह जॉब जाओ तो वहाँ आपको रेफरेंस देने की जरूरत भी नहीं है, राइट? सो व्हाई यू आर बिल्डिंग दिस काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड? सो सपोज कि कोई एम्प्लॉय हो, राइट, वो अगर देख रहा हो ये एपिसोड, सो ही कैन अंडरस्टैंड। सो आई विल गिव यू एग्जांपल्स क्या होता है व्हेन यू डू दिस एक्चुअली। प्लीज। सो मेरे लिए कोई था नहीं रेफरल देने के लिए व्हेन आई वाज एंटरिंग इन द मार्केट में, इंडस्ट्री में आया, बट आई वांट टू समबडी कि भाई हु आई कैन रेफर एंड आई वांट टू मेक देम रेडी। अभी ये लास्ट ईयर के कम्युनिटी इवेंट की बात है, होस्टिंग दैट इवेंट, एक्चुअली आप लोग भी आए थे। यस। तो उस दिन आई वाज डूइंग सम मैचिंग, भाई कौन क्या क्यों आए हो, तो किसी ने बोला कि भाई सर हम जॉब ढूंढने आए हैं। तो कुछ लोग खड़े, मैंने बोला रुको खड़े हो, एनीबडी ऑफरिंग जॉब्स हियर एक्चुअली, तो उनमें कुछ लोग खड़े हुए, हम लोग ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद 7 लोगों को जॉब मिली है Wow. वाओ। लास्ट ईयर है। इस साल ऑलरेडी मेरे पास ऐसे कुछ आ चुके हैं कि भाई हम लोग 4-5 लोग जो हमने जॉब बोर्ड रखा था
कम्युनिटी इवेंट ही है यहाँ पे, ना हम मैं पैसा ले रहा हूँ ना पैसा दे रहा हूँ, आई एम जस्ट हेल्पिंग पीपल नेटवर्क एंड इंटरेक्ट देयर, कनेक्टिंग। आई एम जस्ट द ब्रिज एक्चुअली। और अगर वो ब्रिज आपको जॉब दिला रहा है, आपको रेफरल दिला रहा है, आपकी इंटर्नशिप दिला रहा है, देन प्रॉब्ली आई वुड लव टू बी मेक यू हैप्पी कि भाई आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट मी कि भाई यार ऐसा बनना है। वो रोल मॉडल मेरे पास कोई था नहीं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। आई डोंट वांट टू बी अ रोल मॉडल, आई जस्ट वांट टू कि भाई दिस इज पॉसिबल। एक टियर 3 टियर 4 सिटी का अगर लड़का कर सकता है आज के दिन में विथ नो रेफरल, नो बैकिंग, नो बिग नेम्स, मैं ना किसी IIT IIM से पढ़ा हुआ हूँ, कॉलेज का नाम भी किसने सुना नहीं होगा शायद, स्कूल का नाम भी किसने सुना होगा। और ये रिसेंट बात है, दिस सैटरडे आई वाज इन अहमदाबाद फॉर एन अवार्ड एक्चुअली। मेरा भांजा है, वी बोथ डिड इंजीनियरिंग सेम कॉलेज से हम लोग, 1 साल का फर्क है। ओके। तो मैं सुबह गया इवेंट में, शाम को आया, बोलता है मतलब आई वॉज वेल ड्रेस्ड, मतलब वो फोटो दिखा उसने, मतलब बोलता है इसको देख के लगता नहीं कि हम लोग सेम कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और वो वही शॉर्ट्स में टी शर्ट्स में वो काम कर रहा था। तो मतलब ऐसा भी है कि इस कॉलेज से बंदे यहाँ पे भी आगे हुए हैं। सो जो रास्ता मेरे लिए नहीं था, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल वॉक दैट रोड एक्चुअली, एंड इसीलिए आई डू लॉट ऑफ दिस मेंटरिंग से आई जस्ट हैड टू गिव देम हाफ एन आवर और आवर ऑफ माई टाइम, बट इफ आई कैन मेक अ डिफरेंस इन दर लाइफ कि यार उनकी वजह से मुझे जॉब मिला या फिर मुझे हेल्प हुआ, आई वाज टू क्रैक समथिंग, और देयर आर अदर्स हु स्टार्टेड देयर ओन स्टार्टअप एक्चुअली, उनके पास कुछ आइडिया था, आई हेल्प देम रिफाइन देयर आइडिया एंड दे हैव देयर ओन प्रोडक्ट आउट। सो वो मुझे पैसे या फिर वो कुछ नहीं मिल रहा है, बट आई एम हैप्पी कि दे आर हैप्पी, और वो मुझे याद रखते हैं यार ब्रिजेश, राइट। ऐसे ही हम लोग वी वर नॉट नोइंग ईच अदर, राइट, हम लोग किसी लिंक्डइन से ही मिले थे, एग्री। फर्स्ट टाइम ऑफिस ही आया था मैं आपके, राइट। आई वुड लाइक टू शेयर वेरी गुड स्टोरी। सो ब्रिजेश का सेशन था वैकेंसी में, वैकेंसी इज वन ऑफ द वेरी बिग कंपनी IT सर्विस में अहमदाबाद में, और वहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी थी ब्रिजेश एंड वैकेंसी के CEO से, ऑर्गेनाइजेशनल स्क्रम क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करता है स्पेसिफिक फॉर द IT सर्विस, एंड वी आर फॉलोइंग दैट फॉर पास्ट 2 years। वी आर वर्किंग लाइक वी आर लिस्टेड कंपनी, जस्ट हमारा डेटा पब्लिक नहीं होता है। एंड इट्स अमेजिंग, इट्स लिटरली अमेजिंग। उसने हमारे पूरी की पूरी कंपनी की डायरेक्शन ही चेंज कर दी काम करने की, एंड दैट्स द रीजन वी कनेक्टेड विद ब्रिजेश आफ्टर दैट। दिस इज ऑल आई नीड एक्चुअली, ये कम्युनिटी इवेंट से, ये नेटवर्किंग से, ये इंटरेक्शन से यही मिलता है। हाँ, इट ऑल्सो हेल्प्स यू बिल्ड योर नेटवर्क एक्चुअली। आज का कोई स्टूडेंट कल का CEO हो सकता है, कल का कोई डायरेक्टर हो सकता है, कल कोई बड़ी कंपनी खुद शुरू करता है, एंड आई कैन प्राउडली से कि भाई आई नो दिस पर्सन, एंड दैट पर्सन कैन से अरे यार मैंने इनसे बात की थी, ही हेल्प मी एक्चुअली। दैट इज ऑल दैट यू गेट, दैट इज ऑल यू नीड। बाकी पैसा सभी लोग कमा रहे हैं, खाना सभी लोग खा रहे हैं, सबके पास सब कुछ है। इम्पैक्ट इन शॉर्ट जस्ट वो गैप जो उनके अंदर है, इफ आई कैन फिल दैट और नॉट फिल, आई कैन हेल्प देम फिल दैट गैप देमसेल्फ, दैट इज ऑल दैट इम्पैक्ट की बात है ये। वेरी ग्रेट। इम्पैक्टफुल वर्क। सो आपको कभी ऐसा लगा कि भाई एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, अभी इतना बड़ा नेटवर्क भी है? देखो गुजराती हूँ, धंधा पहले की बात है, एंड इट इज नॉट समथिंग आई हैव नॉट थॉट। ऐसा कोई होता है किसी दिन ऑफिस में काम में आता है कि यार ये क्यों कर रहा हूँ, खुद का क्यों नहीं करता मैं, वो आता भी है। बट क्या होता है ना, व्हेन आई एम वर्किंग ना, हम लोग काम भी ऐसे स्टार्टअप की तरह ही कर रहा हूँ मैं। आई एम रनिंग माई ओन एंटरप्राइज, बिकॉज हम लोगों की टीम जो है काफ़ी बड़ी है, हम लोग बड़ा प्रोडक्ट है, स्केल है, राइट। तो वो ऐसा लगता भी है कि आई एम रनिंग माई ओन एंटरप्रेन्योरशिप, ओन एंटरप्राइज, कि आई एम वर्किंग इन दैट वे, माई टीम इज वर्किंग इन दैट वे, वी आर बिल्डिंग सो मच थिंग, और इम्पैक्ट भी है। जब वो दिखता है कि भाई द सेम थिंग दैट आई एम डूइंग, आई एम एबल टू अचीव इन अ बिगर इकोसिस्टम में, छोटा मेरा एंटरप्राइज है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ मैं। देखो उसमें ऐसा होता है राइट कि क्लाइंट के कॉल्स भी आप डायरेक्ट लो, उसकी प्रॉब्लम भी आप ही सॉल्व करो, इवन आपकी टीम में इन शॉर्ट यू आर रिस्पांसिबल फॉर एनीथिंग दैट एवरीथिंग यू आर मैनेजिंग। करेक्ट। आपके टीम मेंबर भी खुद ही चूज करो। सो टीम मेंबर्स व्हेन यू हैव दैट, वो है ना, वो इसकी बात आती है, रेपुटेशन की बात आती है। व्हेन यू हैव दैट रेपुटेशन, वो रेपुटेशन बनानी पड़ती है कि भाई अरे यार मुझे जाना इसी के पास है, अगर दक्षेश हायरिंग कर रहा है तो मैं दक्षेश के पास ही जाऊंगा मैं। एक तो वो चीज़ है कि लोग सामने से आए, दूसरा है कि भाई मुझे कंट्रोल नहीं है, मुझे मेरे मैनेजर ने या CEO ने जो बोल दिया वही लोग आएंगे। बट वो रेपुटेशन जब मेरी बनी है कि नहीं मैं मेरे टीम में खुद करूंगा और करूंगी, वो रेपुटेशन फ्रीडम रहती है वहाँ पे। बट वो रेपुटेशन बनानी पड़ती है। और अगर आपको कल मैंने हायर किया और आप बोलोगे मैं मेरी टीम खुद बनाऊंगा, आई डोंट नो यू, आई डोंट ट्रस्ट यू येट, यू हैव नॉट शोकेस योर स्किल्स येट। तो वो क्रेडिबल बनने के बाद देन दे ट्रस्ट यू ब्रांडली। इफ यू गो एंड आस्क माय बॉस टुडे, हम लोगों ने इतने झेले हुए हैं, इतनी चीजें किए हुए, बट ही स्टिल ब्लाइंडली कर लेना, तू देख लेंगे।
लाइक व्हाट आई हर्ड व्हेन वी पास आउट द कॉलेज कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो स्टार्टअप के साथ आगे बढ़ो तो आपको जल्दी ग्रोथ मिल जाएगी। एमएनसी में क्या होगा कि आपके पास एक रेडीमेड चेकलिस्ट आ जाएगी, आपके पास प्रोटोकॉल आ जाएंगे, एसओपी आ जाएंगे, आपको वही करना है। सो हाउ इट इज ट्रूथ, बिकॉज आफ्टर लिसनिंग यू लाइक इट्स अ टोटल व्हाट अबाउट कंट्रोल, व्हाट अबाउट द बिल्ड द एसओपीज। सो दोनों ये जो बात करें स्टार्टअप और दोनों का पर्पस अलग है। व्हेन आई स्टार्टेड माई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस सर्विस इंडस्ट्री में गया, 35 साल पुरानी कंपनी थी, मैंने 10 साल उसमें जो काम किया है। मैं जैसे ही ज्वाइन हुआ, मतलब आई वॉज डूइंग डेवलपमेंट, आई वॉज डूइंग सपोर्ट, आई वॉज डूइंग प्री सेल्स, आई वॉज हायरिंग। मैं लिंक्डइन से हायरिंग में 2013 से कर रहा था। ओह इज इट? जब लिंक्डइन लोग यूज भी करते, मैं उस टाइम हायरिंग, आई डिडंट हैव वो करियर वाला वो अकाउंट नहीं था, वो सेल्स वाला अकाउंट था, बट आई न्यू आई वाज एबल टू फाइंड पीपल, आई वाज हायर पीपल। माय बॉस, सो वो क्या होता है ना कि किसी के अंदर क्या स्किल है वो ढूंढना पड़ता है, या तो उनको पुश करो या तो दिखाते हैं सामने से। तो वो तुम्हारे जो मेंटर है ना, दैट इज वेयर दैट पर्सन हेल्प्स एक्चुअली, कि क्या तुम्हें क्या चीज़ करनी चाहिए, व्हाट आर यू मेड फॉर, व्हाट आर यू गुड एट। उन्होंने मेरे को सब करवाया। इन द फर्स्ट 3 years मैंने ये सब चीज़ की हुई है, ऐसा कोई चीज़ बाकी नहीं थी जो नहीं की होगी मैंने। उन्होंने बोला हाँ ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। इन अ वे इट वॉज गुड, इन अ वे इट वॉज बैड ऑल्सो। प्रोज एंड कॉन हर एक चीज़ के होते हैं, बट दैट मेड मी रेडी फॉर द इंडस्ट्री। आज के दिन में कुछ भी नया आ जाए, मुझे पता है ये क्या होता है, कैसे होता है। आई जस्ट हैव टू कि भाई 10 साल पुराना चीज़ था, मुझे अब वापस वो ट्यून करना है, दैट्स इट। द सेम थिंग हैपन्स विद एमएनसीज एंड स्टार्टअप्स, कि स्टार्टअप में क्या करना है, फास्ट, सब आप ही को करना है, राइट। बट बिकॉज वो हम लोग फास्ट मूव कर रहे हैं तो हम लोग अरे ये तू कर ले, ये तू कर ले, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर इट। स्ट्रक्चर वर्क थोड़ा कम होता है, बट व्हेन यू मूव टू एनएमसी यू आर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आज मेरी को रिलीज जा रही है, अगर कुछ फटा तो आई एम अकाउंटेबल फॉर इट, कि क्यों हुआ, कैसे व्हाट इट हैपेंड। तो वो अकाउंटेबिलिटी, वर्किंग विद इन गार्ड रेल्स, वर्किंग विद टीम्स, क्रॉस टीम कोलैबोरेशंस, वर्किंग विद मल्टीपल टूल्स, वर्किंग विद वट एवर यू हैव। ऐसा नहीं है कि अरे ये टूल अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, हम लोग नया डाउनलोड कर लेते, ऐसा नहीं होता। इट हैज़ टू अ होल प्रोसेस एक्चुअली कि भाई कैसे होगा, बिकॉज वो आप अपने लिए टूल डाउनलोड नहीं कर सकते, उसके लीगल फ्रेमवर्क है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन देखती है। सो बहुत सारे गार्ड रेल्स होते हैं। आई नॉट से वो ये बॉक्स है, इट इज गार्ड रेल्स टू मेक श्योर एवरीबडी इज सिक्योर, एवरीबडी इज सेफ, वट एवर वी आर बिल्डिंग इज सेफ एंड सिक्योर। एंड इफ देयर इज सम डैमेज, वो गार्ड रेल के अंडर ही डैमेज है, वो एक्सपोज नहीं हो रहा है डैमेज। वो सीखना भी ज़रूरी है। तो ये दोनों साइड जो है, एंड इफ देर आर प्रोडक्ट कंपनीज वेयर दे वर्क इन बोथ ऑफ दिस कल्चर, एक्चुअली दोनों का फ्लेवर है इसमें। दिस इज द बेस्ट प्लेस एंड दिस इज ऑल सब्जेक्टिव। मुझे क्या करना पसंद है भाई, मुझे 9 to 5 पसंद है, मुझे मेरा टास्क दिया आज मैं वो करूँगा, घर जाकर सो जाऊँगा। वो प्रेफरेंस पे भी आता है। या फिर मुझे ये भी करना है, आई वांट टू शोकेस, मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। मुझे ये दे दो, मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे दे दो, गिव मी अ चैलेंज एंड आई विल पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो डिपेंडिंग व्हाट यू वांट टू अचीव इज वेयर यू शुड मूव एक्चुअली। So Drijesh, you also mentioned about the upskilling, right? अगर सपोज कि कोई टायर 2 टायर 3 से है, या फिर कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, तो अपस्किलिंग उसने समझ लिया, चलो भाई मुझे अपस्किलिंग करना है, लेकिन कहाँ से करें? कोई ब्लॉग हो गया, यूट्यूब हो गया, कोई कोर्सेज हो गए, विच इज़ द करेक्ट प्लेस फॉर दैट? अगर ये चीज़ 10 साल पहले पूछते थे ना, तो ये नहीं था अवेलेबल। बट इन द लास्ट 5 years एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। नो डाउट। पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कुछ सीख रहा हूँ, उसके लिए फ्री है, आई डोंट नीड मनी फॉर दैट। बट कहाँ से? आज के दिन में एक बहुत अच्छा टूल है आपके पास, गूगल, सर्च करो, यू विल फाइंड यूट्यूब वीडियोस, यू विल फाइंड डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे बहुत सारे। इफ देयर आर बेसिक स्किल, जेनरिक स्किल्स है, उसके कुछ जो है, जो खुद के ट्यूटोरियल्स डाले हुए लोगों ने, जो पॉडकास्ट ये चीज़ है वो खुद के डालते हैं, वो देखो, वो पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन देखो। फ्रॉम दैट यू आर रेडी टू स्टार्ट डेवलपमेंट, अगर ऐसा कोई स्किल सीखना है तो। हाँ, एक्सपीरियंस वो काम के साथ आएगा, बट इफ़ यू वांट कि भाई हाँ मुझे फॉर एग्जाम्पल पाइथन शुरू करना है, पाइथन सीखना है मुझे, मैं अभी फाइनल में हूँ, मुझे पाइथन नहीं आता, कोई भी एक आधा ट्यूटोरियल पकड़ो, पाइथन का अवेलेबल है, हार्डली 15-20 दिन का काम है। इफ समबडी इज डेडिकेटेडली एंड वांट्स टू डू इट, 15-20 दिन में दे आर रेडी टू डू एनी डेवलपमेंट वर्क। एक्सपीरियंस बाद में आएगा, बट वो दे विल बी एबल टू कोड इन पाइथन। दिस इज जस्ट वन टेक्नोलॉजी टॉकिंग अबाउट। ऐसा कुछ नहीं है जो आज के दिन में अवेलेबल नहीं है इन द मार्केट। इट्स जस्ट यू हैव टू फाइंड इट। यूडेमी है, कोर्सेरा है, यूट्यूब है, ब्लॉग्स है, ऑफलाइन कोर्सेज भी है। इफ यू प्रीफर कि मुझे ऑनलाइन नहीं मिलता, आई वांट टू गो ऑफलाइन, ऑफलाइन कोर्सेज भी हैं। And one of
The best way you can do, just ask to ChatGPT मुझे करना है 10 लिंक भेज दे, वो भेज देगा. हाँ बट चैट जीपीटी कभी कभी ब्लोकर नहीं देता है. इफ यू आस्क नाउ, अभी आज जाके पूछो कि मुझे ये ट्रेनिंग करानी है किसी को, एंड गिव मी फ्रीली अवेलेबल लिंक्स, वो यूट्यूब के 10 लिंक भेजेगा, उसमें से 10 के 10 अनअवेलेबल होगी. हाँ ऐसा होता I have है. tried, and so even that has limitations actually. But there are other tools also where you can go and find ChatGPT है, for example, Perplexity है. If you go to Perplexity, it will give you valid working links because there is a different use case अलग है Perplexity का. वो research के लिए ही है, so they understand उनके मॉडल के साथ वो इंटरनेट भी स्क्रब करते हैं to get the data. So you have access to all this technologies and tool, और ये सब फ्री मिल रहे हैं. ChatGPT फ्री है, Perplexity फ्री अकाउंट सभी के पास है, तो फ्री में सब मिल रहा है, then why not use it? आज के दिन में कोई बोले मुझे सीखना है बट मुझे कहाँ जाऊँ सीखना पता नहीं कहाँ है, देन दे आर नॉट मेड फॉर दिस. गॉट इट. बिकॉज हाथ में ही है. सब कुछ हाथ में है. लैपटॉप की जरूरत नहीं है. आई स्टार्टेड माई करियर एज विद द सेकेंड हैंड लैपटॉप. मेरे पास नहीं था पैसा उतना. मैं लैपटॉप मेरे एक फ्रेंड का बोरो करता था. उस टाइम इलेक्शन के वक्त वो बैनर डिजाइन करते थे ना, वो डिजाइन करता था मैं, प्रिंटिंग देता था, उससे पैसा कमाता था मैं. आई कैन रिलेट यू मोर. मेरा जो लैपटॉप था वो मेरे माय कजिन्स थ्रो देयर लैपटॉप इन गार्बेज. मैंने वहां से उठाया था और मुझे दीवार का सपोर्ट रखना पड़ता था, वो गिर because जाता था. गिर जाता था. मेरा फर्स्ट लैपटॉप, आई वॉज एन IT इंजीनियर बाय द वे, फाइनल ईयर के 8th सेम में मिला है मुझे मेरा लैपटॉप. पर्सनल लैपटॉप मेरे फादर ने खरीदा था मुझे, एंड आई स्टिल हैव दैट लैपटॉप. डेल वॉस्ट्रो है वो भी. ये डुअल कोर, बिकॉज उसमें C का एमुलेटर चलता था. उसके बाद कोर टू डुओ जो है उसमें चलते नहीं थे. इट डिडंट सपोर्ट C++ प्रोग्रामिंग के लिए. गॉट इट. आई वाज a C प्रोग्रामर अर्लियर. So conclusion is that कि आप में खुद में भूख होनी चाहिए, रिसोर्सेस हो कि ना हो. तुमने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि हम लोग वो लाइट के नीचे पढ़ते थे, वो चल के आते, राइट. वो स्टोरी सभी की जनरिक अवेलेबल है, राइट. हमारे लिए वही है कि अगर आज के सबके पास फोन है, किसी के पास फोन नहीं है. योर फोन इज एज गुड एज कंप्यूटर और इवन बेटर फॉर सम यूज केसेस. अगर मोबाइल है हाथ में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन दैट यू हैव. यूज इट. Exactly. Even आज जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, right, we have 2 lights, 3 camera, 3 mics and everything. But I started podcast in 2020, April 2020. I only have the Motorola G6 phone, nothing else. जो जितने भी यूट्यूबर्स देख रहे हो जो सक्सेसफुल है, उन्होंने सबने फोन से शुरू किया था. आज उनके पास वो गिम्बल है, वो है, चलिए शुरू करते हैं, वो बहुत काम उनके पास है. But they started very start today. Even I remember one funny thing is that I just part of Robocon. It's Asia Pacific level game, and I wrote the code in my Namo eTab 1000 way wala. Or it's more faster than it's complete more before 2 seconds of my senior would do the code in laptop. हाँ, तो वही है, मतलब हाउ यू यूज इट इज इम्पोर्टेंट. Right. इट्स टूल्स, टेक्नोलॉजी सबके सभी अवेलेबल हैं. ऐसा कोई बोले कि भाई मेरे पास नहीं है, देन आई एम सॉरी, दे आर वो मून पे रह रहे हैं शायद, वो यहाँ पे नहीं है. Excuse. हाँ, तो वो वही वाली बात है. जिसको करना है ना, जिसमें लगन है करने की, वो कभी पीछे नहीं गिरता, कभी भी. दे विल फाइंड अ वे टू डू इट. No doubt. So Drijesh, we talk about so many things like MNC culture, mindset, product building, team upskilling, personal branding, even as an employee. So thank you so much for having a very deep conversation with us. And guys, if you're looking for any kind of new topic that you would like to ask Drijesh, right, you can definitely reach out to us, ask in comment. And even if you want to reach out to Drijesh direct, so Drijesh, can I add your LinkedIn link in description? हाँ, भेज दो. दुनिया के पास अवेलेबल, ये डाल दो, कोई इशू नहीं है. नो, नॉट एन इशू एक्चुअली. Sure. So thank you so much, Drijesh, for shooting this podcast with us. It's a build mode on with TST Technology. Thank you, Partha, and thank you, Dakshesh, for having me. It was a pleasure.